Welcome back once again. Hope you all enjoy the scrumptious meal and all of you are very energized to join us back in the session. So to revive the energy of this colloquy, I would like to request our team to play our anthem once again. जनता का आह्वान किया, वर्षों जकड़ी बेड़ियों को अब तो तोड़ो। क्रांति की मशाल जला गांधी बोले, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बहुत सहा गुलामी को अब ना सहेंगे, आजादी की बात रही वो लेके रहेंगे। अगस्त की बेला में हम सौगंध उठाते हैं, सशक्त राष्ट्र के सपने को चलो मिलकर आज सजाते हैं। हर युवा को रोजगार मिले, हर नारी की आजादी हो, हर घर स्वास्थ्य सबल बने, ये गली गली मुनादी हो। विकसित हो, जन जन स्वाभिमानी हो, देश में ना रहे गरीबी, विकास ही अपनी निशानी हो। एक क्रांति फिर ऐसी हो, रगों में वही रवानी हो, कंधे से कंधा मिलाकर सबने बस यही ठानी हो। अगले सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष दो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें भी अपने हुनर मालूम हैं। हम भी दरिया हैं, हमें भी अपने हुनर मालूम हैं, जिस तरफ भी चल पड़ेगा रास्ता हो जाएगा। थैंक यू। We have now reached the final session for the day. In this session, we will dwell into the critical intersection of climate change and tribal livelihood, seeking innovative solutions for sustainable and prosperous future.
The impact of climate change poses a significant challenge for indigenous smallholder subsistence farmer whose deep connect with their natural ecosystem spans generations. These communities, relying on land for their social, cultural, economic needs, face substantial risk due to the climate change. In Jharkhand, where the tribal population constitute 26% of the populace, it becomes imperative to recognize and address specific climate vulnerabilities affecting their life. This expert panel brings together voices from various stakeholders to discuss the impact of climate change on tribal communities and propose solutions for sustainable future. Though the journey ahead may not be easy and challenging, but together we can create a blueprint for climate resilient prosperity. Let us draw the strength from profound connection between human and nature and work towards building a future that preserves the harmony of our ecosystem. I extend a warm welcome to Ashok Ji, Director Agriculture, TRIF, who will be facilitating this important session. With 25 years of experience working closely with smallholder farmers in undivided Bihar and Jharkhand, Ashok Ji brings a wealth of experience, knowledge, expertise to discuss today. Particularly with smallholder farmers, exemplify the commitment and dedication towards important enhancement, income enhancement, and sustainable livelihood development. Ashok Ji, over to you. Please welcome him. थैंक यू अमिता। और लंच के बाद आए सभी साथियों का फिर से स्वागत है। मुझे कठिन काम मिला है कि भोजन के बाद सब लोगों को जगाए रहना, जो कठिन काम होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो इतना ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी उसमें सजग होकर के शामिल होंगे। और लोग कहते हैं कि अगर आपने भरपेट खाना खाया है तो किसान को धन्यवाद दीजिए। सो thanking the farmers, we are starting our next panel. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर नीतीश कुमार सिंह IAS जो DDC खूंटी हैं। ये DDC रहते हुए खूंटी में इन्होंने एक कृषक पाठशाला का निर्माण किया है जो आज के दिनों में एक हॉलमार्क हो चुका है एग्रीकल्चर को, किस तरह से ट्राइबल एरिया में, इंटीरियर एरिया में हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर हो सकता है कैसे, और वो एक तरीका का एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है और लोगों के लिए सीखने का एक उदाहरण बना है। तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका इस पैनल पे। हमारे पैनल के दूसरे सदस्य हैं डॉक्टर शिवेंद्र कुमार। झारखंड इनका परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बहुत हम्बली बता देना चाहता हूं कि सर 1978 के बैच के एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज से हैं और इन्होंने लंबे समय तक रिसर्च को लेकर के, पब्लिकेशन को लेकर के और किसानों के साथ लंबे समय तक काम किया है। ये जो ICR का रीजनल सेंटर है रांची में, उसके हेड रहे हैं और अभी बहुत एक्टिव रूप से फार्मर्स के साथ और जो भी फार्मर्स के साथ काम करते हैं उनके साथ लगे रहते हैं। तो कभी भी हमें किसी जानकारी की ज़रूरत है, किसी मदद की ज़रूरत है तो हम शिवेंद्र कुमार सर से कभी भी संपर्क करते हैं। तो स्वागत है सर आपका इस पैनल में। हमारे अगले सदस्य हैं इस पैनल में मिस्टर प्रदीप हजारी जी जो स्पेशल सेक्रेटरी और एडवाइज़र हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के। सर ने काफ़ी स्ट्रेटजिक गाइडेंस और सलाह सरकार को दी है जिससे बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हम सभी लाभान्वित होते हैं इनके तरह तरह के प्रोग्राम जो सरकार के साथ मिलकर बनती है। सो प्रदीप सर स्वागत है आपका इस पैनल में। और हमारे पैनल में कुछ बहुत अनुभवी इम्प्लीमेंटर्स भी हैं जो कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा शमशाद आलम जी का। तो शमशाद जी ने करीब 27 सालों से ज़्यादा किसानों के साथ काम करते हुए अपना समय बिताया है और तसर डेवलपमेंट फाउंडेशन के ये CEO भी हैं। और जो भी लोग फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, प्लांटेशन से जुड़े हुए हैं, तसर से जुड़े हुए हैं, शमशाद जी को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो स्वागत है शमशाद जी आपका इस पैनल में। हमारे अगले साथी हैं पैनल में विजय शंकर जी। विजय शंकर जी जो 14 सालों से एक क्लाइमेट चेंज और कार्बन फाइनेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्होंने लंबे समय तक बहुत सारी बड़ी संस्थाओं जैसे WRI, डेलॉय
इस तरह की संस्थाओं के साथ काम किया है और आज के दिनों में ये एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के रूप में जो कार्बन फाइनेंस है और कैसे छोटे किसानों को कार्बन फाइनेंस से जोड़ा जा सके उसको लेकर के काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगा संतोष जी का। संतोष जी को हमने थोड़ी देर पहले भी सुना था। संतोष जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटेलीकैप एडवाइजरी सर्विसेज से और जो लीड जो करते हैं एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वाले सेगमेंट को लीड करते हैं। और संतोष जी है अपने साथ में 2 दशकों से भी ज़्यादा का अनुभव लेकर के आएंगे, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस, एग्रीकल्चर और इस तरह की चीज़ों को लेकर के उन्होंने लीडरशिप दिखाई है। तो इसके पहले हम लोग इस पैनल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। एक छोटा सा बैकलॉग काम है जो हम चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए। थोड़ी देर पहले हम अपने स्वास्थ्य के साथियों को सुन रहे थे जो यहाँ पर अपने जन स्वास्थ्य में किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह के सॉल्यूशंस हैं उसको लेकर के काम कर रहे थे। तो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना हमारा रह गया था, तो मुझे लगता है कि वो काम हम पूरा कर लें। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा नीलूफर जी को। नीलूफर प्रवीण जी, कृपया आप जरा डाइस पर आएंगे। तो नीलूफर जी का जो कंट्रीब्यूशन है जन स्वास्थ्य को लेकर के, हम ताली बजा करके नीलूफर जी का थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण सर को कि उनका मान सम्मान के लिए उनका जो एक छोटा सा गिफ्ट है वो देने का। नीतीश सर को मैं अनुरोध करूंगा। जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा, क्या नाम है, नरमी प्रेमिका तिर्की जी को। और मैं अनुरोध करूँगा संसाद से कि वो उनको एक उपहार दे करके उनका मानवर्धन करें। ओके, रोशन। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा रोशन लाल मुंडा जी को डायस पर। हाँ, और मैं अनुरोध करूंगा हजारी सर को उनका मान सम्मान वर्धन करते हुए एक हमारी तरफ से छोटा सा उपहार देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो इसके बाद पैनल चर्चा जो है उसको हम लोग शुरू करेंगे। और लेकिन उसके पहले मैं ये जो कॉन्टेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, सविता, अच्छा वो छूटा, अच्छा माफ़ी चाहता हूँ, एक नाम हमसे छूट गया, सविता जी को। सविता जी आप थोड़ा डायस पर आएंगे कृपया। और मैं अनुरोध करूंगा कुमार सर को कि सविता जी का धन्यवाद। थैंक यू। तो अगला जो सेशन है पैनल डिस्कशन, जिस पर हम क्लाइमेट चेंज और स्मॉल होल्डर फार्मर्स और कैसे उनकी आजीविका का सुरक्षा और उनका बढ़ोतरी हो सके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले चूँकि संतोष जी हमारे साथ में हैं तो मैं उनको निवेदन करूंगा, ये जो क्लाइमेट चेंज का एक ग्लोबल और एक नेशनल और एक लोकल पर्सपेक्टिव देने का एक प्रयत्न करेंगे हमारे साथ, ताकि हम समझ पाएँ कि ये चैलेंज किस तरीके का है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जहाँ पर किसान जुड़ सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस से और अपनी आजीविका को और भी बेहतर कर सकते हैं। संतोष जी कृपया। Thank you, Ashok ji, and respected panelists and everyone in the audience.
एक बार फिर से आपको जोहार। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स करके बता सकूं। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि हिंदी में बोलूं, बट होता नहीं है ऐसा, सो अपोलॉजीज फॉर दैट इन एडवांस। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी रूरल कोलोकी पे बात करना चालू किया था, और जब हम लोग क्लाइमेट और रूरल को जोड़ते हैं तो बहुत ही अलग तरह का ख्याल आता है। जो क्लाइमेट की समस्या है उसमें ग्रामीणों का योगदान, खास करके उन किसानों का, जनजातियों का योगदान एकदम नगण्य है। तो हमें ये पहले जाननी होगी कि हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो इनका योगदान उसमें, उस क्लाइमेट को ख़राब करने में बहुत कम है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इस क्लाइमेट के कारण से, क्लाइमेट चेंज के कारण से जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, फसल कम होती है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इन पे पड़ता है। तो एक ऐसी समस्या है जहाँ पे गांव के लोगों का कोई योगदान नहीं है, बट नुकसान सबसे ज़्यादा उनका होता है, और उनके पास इसको सहने की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से ये उतने सक्षम नहीं है। लेकिन ये ऐसा समस्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसको नहीं किया है तो हम इसके समाधान में हम सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये समस्या अब आ चुकी है। अब ये वो बात नहीं है कि हाँ ये कोई दूर की समस्या है, हम रोज़ उससे निपट रहे हैं। आप अगर अखबार पढ़ेंगे, टीवी न्यूज़ देखेंगे, कहीं ना कहीं बाढ़ आया हुआ है, कहीं ना कहीं सूखा पड़ी हुई, तो समस्या आ गई है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल लेवल पे सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर हमने पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, या जो वो गैसेज है जिनसे कि पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, धरती गर्म हो रही है, उसका जितना ज़्यादा हम कटौती कर सकें वो हमारी प्रायोरिटी है, और हर जगह से कटौती कर सकें। दूसरा ये है कि अगर कटौती नहीं कर सकते हैं तो जिस तरह से भी हम उसको खींच सकें हवा से, कैसे हम हवा में जो उपस्थित कार्बन है उसको हम लोग वापस ले सकें, ताकि धरती में कार्बन की जो कुल मात्रा है वो एक लिमिट के अंदर रह सके, और हम बहुत ज़्यादा ऐसे स्थिति की तरफ ना बढ़ें जहाँ पे कि धरती पर रहना मुश्किल हो जाए। अब इसमें किसानों का योगदान क्या हो सकता है? एक जो समस्या अभी उभर के आई है उसमें ये बात सबने मानी है कि अगर क्लाइमेट को सोल्व करना है तो हर किसी को योगदान करना पड़ेगा, ये किसी एक के करने से नहीं हो सकता है। अगर हम किसी एक के करने से नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या सामर्थ्य है करने किसकी? तो हम लोगों ने बहुत देखा कि हर आदमी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, और ख़ास करके किसान और वो लोग जो खेती करते हैं, जिनके पास ज़मीन है, जो जंगल में हैं, जो जनजाति हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बट समस्या ये है कि उनको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए या तो तकनीकी समझ नहीं है, या फिर उनके पास वो पूंजी नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि अगर वो ये लगाते भी हैं तो शायद उनको इससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं होता है तो हम ये मानते हैं कि आप निजी खर्चे पे समाज का भला नहीं कर सकते हैं। समाज के खर्चे पे समाज का भला होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैनॉट प्रोड्यूस पब्लिक गुड बाय इन्वेस्टिंग प्राइवेट कैपिटल, इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग पब्लिक कैपिटल, अदरवाइज इट वोंट गो दैट फार। सो इन सभी समस्याओं पर जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये 3 लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा आता है। एक तो समाज का, दूसरा सरकार का, और तीसरा कॉरपोरेट या बाज़ार का। अब ये तीनों का अगर देखेंगे इनका रोल, तो सरकार की जो समस्या है वो ये है कि पर्यावरण के कारण जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे वो अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग सब सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद करें। जो लोग जो इससे प्रभावित हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे नहीं पता है। अगर हम पर्यावरण परिवर्तन के मुख्य कारणों को ध्यान दें तो ये अधिकतर ऐसा हुआ है कि ये जो विकसित देश हैं या जो कॉरपोरेट्स हैं उनके इमिशन के कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा हुआ है। तो कॉरपोरेट का एक वो रोल है। अब जब हम इसको लेके आते हैं तो क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था सोच सकते हैं जिसमें कि अगर कोई किसान पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहे तो उसको हम लेवरेज कर सकें, उसको हम सपोर्ट कर सकें फिनेंशियली, तकनीकी रूप से, और उसकी मदद कर सकें। ये थियोरेटिकल लेवल पे है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे करना बहुत मुश्किल है। आज का जो पैनल है, काफ़ी लोग हैं जो तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हैं, और उस पर बात करेंगे। बट मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि हम ये ताकि पैनल उस पर कुछ कर सकें कि ये कहाँ से आएगा पैसा, कौन लाएगा पैसा अगर ये काम करने के लिए। तो क्लाइमेट फिनेंस में एक अंग्रेजी में कहावत है, पोल्यूटर पेज। जिसने प्रदूषित किया है वो पे करेगा।
जिसने ख़राब किया है पर्यावरण को वो पे करेगा, राइट। दूसरा चीज़ है कि जो अगर उसके ख़राब को अच्छा कर रहा है तो उसे इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमारी हैं जिसके कारण से ये क्लाइमेट फाइनेंस आ रहा है। तीसरी जो समस्या है कि ये हम मान के चलें तो वो कैसे आएगा, वो जो पोल्यूटर पेज का पैसा यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? वो आदमी तो नहीं आएगा, तो हमें बीच में कोई ना कोई एक ऐसी सिस्टम बनानी पड़ेगी जहाँ से पोल्यूटर पेज के प्रिंसिपल को मानते हुए कॉरपोरेट के पैसा को, जो विकसित देशों का जो कमिटमेंट है क्लाइमेट के लिए, उसको हम ज़मीन पे ला सकें। इसको लाने के लिए एक जो समस्या आई कि हम कैसे दें पैसा, तो कार्बन फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस में एक जो थोड़ी सी डाइवर्सन है नॉर्मल फाइनेंसिंग से, कि इसमें पैसा आपको तब मिलता है जब आप वो दिखा देते हैं कि ये रिजल्ट आया है, कि हमने ये किया है। लेकिन किसान रिजल्ट लाने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा संस्था चाहिए जो उनको पहले पैसा दे कि आप रिजल्ट लीजिए, हम पैसा आपको बाद में देंगे। ये समस्याएं हैं जो आई थिंक विजय जी, शमशाद जी और हमारे अधिक जो पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे। बट एक आइडियल क्लाइमेट फाइनेंस, एक आइडियल क्लाइमेट एक्शन डिसेंट्रलाइज होना चाहिए जहाँ पे हर कोई पार्टिसिपेट कर सके। डिसेंट्रलाइज होने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये जो किसान हैं, जनजाति हैं, उनका रिस्क नहीं इसमें होना चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस में उनको हम जो मार्केट के जो रिस्क हैं उससे कैसे अलग कर सकते हैं, तो जब कार्बन का प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कार्बन कम होगा, इससे उनको हम प्रोटेक्ट करें। दैट्स पहला प्रिंसिपल, बिकॉज वो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इस मैकेनिज्म के कारण वो और वल्नरेबल हो जाएं। दूसरा कि जब हम इसको कर रहे हैं तो कार्बन की जो प्राइस है, जो कार्बन की जो वैल्यू है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा किसान को मिलना चाहिए, वो कार्बन पैदा कर रहा है। सो इस वैल्यू चेन में बहुत सारे लोग हैं जो कार्बन खरीदते हैं, सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, कंसल्टेंट हैं, उनका हिस्सा उनके किए गए योगदान के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम योगदान कर रहे हैं 5% का और हमारा जो हिस्सा है वो 25% का है। किसान का योगदान 70-80%, 90% होता है, उनको 90% मिलना चाहिए। और लास्ट ये कि ये जब तक हम ऐसे व्यवस्थित रूप से न करेंगे जहाँ पे कि बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं, कोई बोलता है कि इस पे अभी हमें कानून नहीं बना है, कोई बोलता है कि हम कार्बन क्रेडिट का मार्केट में वॉलंटरी में जाएं, कंप्लायंस में जाएं, ग्रीन क्रेडिट आ रहा है यहाँ बेचेंगे, ये सारी चीज़ें लोगों को कन्फ्यूज करती हैं। तो सरकार का रोल है कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी लाएँ, लोगों को बताएं कि देखिए ये हमारा पहलू है। तो अगर ये पैनल ये 3-4 चीज़ों पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा बता सके अपने एक्सपीरियंस से, एक ये कि हम किसानों को कैसे मदद कर सकते हैं कार्बन फाइनेंस के द्वारा, क्लाइमेट फाइनेंस के द्वारा। दूसरा, उसमें अभी क्या हो रहा है, क्या उसमें लर्निंग्स हैं दैट वी कैन शेयर। तीसरा, सरकार का संस्थाएं जैसे साइंटिफिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं एग्रीकल्चर के ऊपर कि एग्रीकल्चर से कैसे क्या निकलता है, सिविल सोसाइटी है, TRF संस्थाएं, उनका रोल क्या हो सकता है। और लास्ट कि ये सब इस तरह से कैसे करें कि हम बड़े पैमाने पे कर सकें। छोटे पैमाने पे तो हम कर पा रहे हैं, हमने भी कहीं पे 5 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ कर लिया है। और झारखंड में हम लोगों ने शुरुआत की थी, झारखंड ऑलरेडी एक बड़ा प्रोग्राम कर रहा है जहाँ पे 75,000 हेक्टेयर में हम लोगों ने प्लांट लगाए हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, 4 से 5 साल का सहयोग मिला हुआ है। बट पेड़ों का देख रखाव, पेड़ इसलिए कटते हैं कि किसी को थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत होगी, उन्होंने पेड़ काट दिया। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो 4 से 5 साल का सहयोग मिला है सरकार के बाद, किसानों को हम ऐसे मैकेनिज्म में लाएं कि उनको 5 साल के बाद भी जैसे जैसे पेड़ बड़े हो रहे हैं और जो कार्बन को कम कर रहे हैं उसका भुगतान उनको होना चाहिए। तो दीज आर सम थॉट्स दैट आई थिंक वुड हेल्प अस गेट सम मोर नुआंस remarks from the panel. With that, over to Ashok ji. Thank you, sir. थैंक यू संतोष। आई थिंक इट वाज क्वाइट एनलाइटनिंग टू लिसन कि कार्बन फाइनेंस किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे ये एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है उन किसानों के लिए जो इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम जो हमारे पैनल के स्टीम मेंबर्स हैं, हम उनसे भी उनका पर्सपेक्टिव, उनका जो भी अनुभव है, उनके जो इंसाइट्स हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले नीतीश सर के पास आऊँगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा थोड़ा हमें प्रकाश डालें कि ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, जैसे हम जब आपके कृषक पाठशाला में देखते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की गई है। इसके अलावा भी आपके अनुसार से जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है वो कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस को बिल्ड करने में
हेल्प कर सकता है और साथ में रूरल कम्युनिटी के लिए लाइवलीहुड का रेजिलियंस क्रिएट कर सकता है। तो इसके ऊपर आपके विचार जानना चाहेंगे सर। Thank you. First of all, I'd like to thank DRI for giving me this opportunity to come and speak on this forum. And my hearty good afternoon to all the panelists and to all the people sitting there. I think I'll use a mix of Hindi and English ताकि सब लोग कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को जिस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे मित्र संतोष जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्लाइमेट रिजिलिएंट, क्लाइमेट चेंज क्या है, इससे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यों हम लोग को कार्य करने की आवश्यकता है इस संदर्भ में। क्लाइमेट चेंज एक आज की डेट में एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सबको जानते हैं और उसका इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। अभी ये वो चीज़ नहीं रह गई है कि इसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में आसपास में देख रहे हैं। बारिश में अभी मानसून का टाइम है, अभी जो बीच में बारिश में ब्रेक होता है इसको ब्रेक इन द मानसून कहते थे। शायद अब जो ब्रेक होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, जो कंपैरेटिवली आज से 15-20 साल पहले हम लोग देखते थे। अभी भी आप करेंटली आई एम DDC खूंटी, तो अगर आप खूंटी में जाके देखेंगे तो अभी भी कई सारे ऐसे खेत हैं जहाँ पे बिजड़ा तैयार भी नहीं हुआ है। कारण इरेटिक मानसून, बारिश आज हो रही है कब हो रही है पता नहीं चल पा रहा है। तो इन सब को जब ध्यान में हम रखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आता है वो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। एंड उसमें जैसे कि अभी ये इशू रेज किया गया, क्लाइमेट रिजिलिएंट फार्मर्स को कैसे बनाएं हम लोग, किस तरीके से आगे कार्य करें। मेरे ख्याल से इस टू सेट द टोन राइट, क्लाइमेट रिजिलियंस क्यों बनाने की आवश्यकता है। अगर हम देखें भी थे कुछ सालों में तो जो हमारे फार्म की प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है वो फूड के वो कम होते जा रहे हैं। अब कुछ साल पहले आई वॉज गोइंग थ्रू अ रिसर्च पेपर, तो पेपर का ये कहना था कि बाई 2100 मतलब इस सदी के अंत तक जो फूड प्रोडक्शन है हमारा, उसका यील्ड जो है वो बाई 40% डिक्रीज़ कर सकता है। और ख़ासकर इसमें असर किस पे होगा, वीट पे और राइस पे, जो हमारा स्टेपल फूड है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। इनका बाई 20 to 30% प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करने की के कयास लगाए गए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वाटर स्कैर्सिटी की, तो जो आज हम लोग देख रहे हैं हर जगह पे कि ग्राउंड वाटर इतना हम लोग निकाल रहे हैं और उसके बाद बारिश सही समय पे नहीं हो रही है, बारिश कम हो रही है, इरेटिक हो रही है। एक जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हिमाचल में और उत्तराखंड में बाढ़ आया हुआ है। सिमिलरली जो मानसून से पहले इस बार एक साइक्लोन आया जो वेस्टर्न पार्ट्स को हिट किया, तो हमारे शहर फ्लडेड हो जा रहे हैं। बट यहाँ आप सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे एट द सेम टाइम तो आपको यहाँ पानी की किल्लत दिखेगी। झारखंड हमारा टेरेन ऐसा है कि आपको ये सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। इससे एक और चीज़ जो जन्म लेती है वो होता है डिजर्टिफिकेशन। चूँकि अभी बहुत सारे बिंदुएं यहाँ पर रखी गई जो कि UNFCCC के डेटाज और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में इन सब चीज़ों को हमेशा रेज किया जाता रहा है। तो डिजर्टिफिकेशन बहुत जीता जाता एग्जाम्पल जो आपको झारखंड में हर जगह दिख सकता है। पर्टिकुलर अगर हम झारखंड के परिवेश से बात करें तो कहीं भी जाएंगे हम लोग, रोड से जा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ आप किसी भी हाईवे में चले जाइए, आपको दिखेगा कि डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। एक्सेसिव बारिश की वजह से, जो कि पेड़ कट रहे हैं, एक्सेसिव बारिश हो रहा है। एक्सेसिव बारिश की वजह से मिट्टी का जो टॉप सॉइल है वो रन ऑफ में चला जा रहा है। इसी में एक और सर्वे था जो आई थिंक मैकिन्जी का था। तो मैकिन्जी ने आज से 3 साल पहले एक सर्वे किया था। उसमें मैकिन्जी ने ये पॉइंट रेज किया था कि यदि हम लोग इसी तरीके से चलते रहे और इस चीज़ को हमने चेक नहीं किया तो जो हमारे अनइरिगेटेड लैंड हैं जिसमें हम धान लगाते हैं,
तो वो 4.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड बाय 2050 विल बी अनफिट फॉर राइस कल्टीवेशन। अब इन सब से एक चीज़ और निकल के आती है, वो जो सबसे अहम मुद्दा है वो फूड सिक्योरिटी का। हम लोग फूड सिक्योरिटी के लिए जितने भी आज के डेट में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे होगा, इससे सबसे ज़्यादा हिट कौन होगा? वैसे देश हिट होंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड कम है, जिनमें जैसे हमारे छोटे आइलैंड्स हो जाएं, या फिर हमारे कंट्री के कोस्टल एरियाज़ हो जाएं, या हमारे कंट्री के पहाड़ी इलाके हो जाएं, तो ये सबसे ज़्यादा हिट होंगे इससे। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे फार्मर्स पे, पर्टिकुलरली जो हमारे सबसे छोटे फार्मर्स हैं, छोटे किसान, जिसको हम स्मॉल लैंड होल्डर्स कहते हैं। एक और स्टडी थी, वो ये कहती है कि 80% ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आगे आने वाले 2 डेकेड में किसी न किसी क्लाइमेट रिलेटेड हैजार्ड से इफेक्ट होंगे। उनका परचेजिंग पावर, अब चूंकि आप सही उनका प्रोडक्टिविटी गिरेगा तो उनके मार्केट जो उनके परचेजिंग पावर है कम जाएगी, कम होगी, और वो फिर पॉवर्टी कह सकते हैं आप उसको, दिखेगा नहीं बट दैट विल बी पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी आप कह सकते हैं उसको। हम लोग पर्टिकुलरली जब फील्ड में, चूँकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही थी, तो हम लोग जब फील्ड में देखते हैं इन सब चीज़ों को, तो लोग, जो सबसे बड़ा इशू है कि लोगों को समझ में आ रहा है, लोग देख रहे हैं, बट लोग फ्यूचरिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे इमीडिएट रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं। हम उनको इंसेंटिवाइज उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि वो शिफ्ट करें, वो चेंज करें अपना क्रॉपिंग पैटर्न, अपने हैबिट्स को चेंज करें, जिससे कि जो हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की, इंक्लूसिव ग्रोथ की, वो हो सके। तो अब हम अगर आते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बोली गई कि लोन्स कैसे देंगे हम, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने डिसीज़न लिया है कि जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे, तो वो जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उसका एडवांटेज हम कैसे उठाएं। हमको लगता है कि ये तो चलिए ठीक है, ये तो आगे विमर्श करने की बात है, ये पॉलिसी डिसीज़न की बात है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग ट्वीक करें अगर, तो इसके इम्पैक्ट्स दिखने लगेंगे। हमको लगता है कि यदि हम क्रॉपिंग पैटर्न में थोड़ा चेंज कर लें, राइट टाइम एट द राइट प्लेस और राइट क्रॉप, हमारी बेचैनी क्या है? हमारी बेचैनी है कि हमको पैसा चाहिए, और हम हर जगह वही चीज़ लगाना चाहते हैं जिसके लिए हमारे पास अश्योर्ड रिटर्न्स है। अभी गवर्नमेंट ने मिलेट मिशन चलाया। मिलेट्स वो हर जगह हो सकता है जहाँ आपका धान नहीं हो सकता है, जहाँ आपका गेहूँ नहीं हो सकता, मिलेट वहाँ भी हो सकता है। हम लोगों ने उस चीज़ को इंसेंटिवाइज करना है। हमारे पास, हम लोग बात करते हैं वाटर एक्सट्रैक्शन की, हम कभी नहीं बात करते हैं कि वाटर को हार्वेस्ट कैसे किया जाए, या बहुत कम बात करते हैं। अब तो खैर शहरों में बात होती है, बट ग्रामीण क्षेत्र में इसके बारे में बात करना अभी भी बहुत बचा हुआ। हम जल छाजन की, वाटर शेड डेवलपमेंट की बात नहीं करते, या बहुत कम करते हैं, या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। वाटरशेड में रिच टू वैली अप्रोच से आप पूरे के पूरे रिच को साथ साथ नीचे वैली सबको ट्रीट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो हम एक एग्जांपल देंगे, क्योंकि एज डीडीसी आई ऑल्सो लुक आफ्टर वाटरशेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ मुरहू ब्लॉक है वहाँ पे, मुरहू ब्लॉक का एक पैच है, इंदीपीडी और उमुदकिल पंचायत, वो हालांकि एक समय पे नक्सल इन्फेस्टेड था। 2-3 साल पहले वहाँ पे वाटरशेड में थोड़ा काम हुआ। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसका हम लोगों ने सर्वे कराया, तो वहाँ पे वाटर टेबल जो था वो 5 फीट से ऊपर उठ चुका था। उसमें कुछ नहीं किया गया था, वो टीसीबी लगाया गया था, टीसीबी किया गया था। दूसरा चीज़ था कि वो जो ज़मीन बैरन थी वहाँ पे मॉइस्चर रिटेन होने लगा था, और वहाँ पे घास उगने लगे थे। तो उसके बाद कुछ किसानों ने शुरू किया वहाँ पे फसल भी लगाना, वो सब्जी वगैरह भी लगाना शुरू कर दिए थे। सिमिलरली एक और इंसिडेंस है जहाँ पे लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाया गया। लूज बोल्डर स्ट्रक्चर गली प्लगिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि जहाँ पे पहाड़ पे, वहाँ पे गली प्लगिंग के लिए लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाया गया।
उससे क्या हुआ कि नीचे का जो टॉप सॉइल था, नीचे के सॉइल के, वो टॉप सॉइल इंटैक्ट रहने लगा, वहाँ भी खेती होने लगी और लोग उसको यूटिलाइज करने लगे, उस पीस ऑफ लैंड को, उस चंक ऑफ लैंड को। एक और एग्जाम्पल है, एक सुंदारी प्रखंड है, सुंदारी पंचायत है तोरपा प्रखंड में। वहाँ पे एक किसान है, तो हम उनसे, वो बहुत छोटा स्मॉल फार्मर है, लैंड होल्डिंग आई थिंक वेरली उसकी 1 एकड़ भी नहीं होगी। तो ऐसे ही रैंडम फील्ड विजिट्स में एक दिन गए तो उनसे मुलाकात हुई। तो उसने बताया कि बीते 5 साल में उसने करीब एग्रीकल्चर से पर ईयर कम से कम वो 1.5 से 2 लाख रुपए निकाल रहा है, और वो हर चीज़ लगा रहा है और अच्छे तरीके से लगा रहा है और हर चीज़ उगा भी रहा है। उसके पास तरबूज भी था, उसके पास आम भी था, उसके पास स्ट्रॉबेरी भी था, सब चीज़ उसने लगा रखा था। उसके पास गाय भी था। तो हमने पूछा उससे कि कैसे किए हो, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि उसके पास उसने 5 भेड़ रखे थे। भेड़ का इधर कल्चर नहीं है, हम लोग तो इस तरह भेड़ रखते नहीं है, बिहार झारखंड में तो हमने नहीं देखा भेड़ रखते हुए लोगों को। तो हमने पूछा कि क्यों रखे हो, तो उसने बताया कि सर इसका जो एक्सक्रीटा होता है वो बहुत अच्छा खाद होता है, तो वो अपने बागीचे में यूज़ करने के लिए उसको भेड़ को उसने रखा था। उसने बताया कि सबसे पहले उसने आम बागवानी लगाई और गाय लिया, दोनों सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए थे। उस गाय के दूध की कमाई से उसने भेड़ खरीदा, और जब पौधे थोड़े बड़े हो गए तो 1 साल का आम बेच के उसने ड्रिप लगाया, और वो ड्रिप इरिगेशन करके अपने घर के पीछे ही उसने, उस समय जब गए थे हम तो वो वाटरमेलन लगाया हुआ था, मस्क मेलन भी लगाया उसके बाद उसने। तो आज के डेट में हर साल आई थिंक अभी तक तो 1.5 से 2 लाख के आसपास अर्न कर रहा है। वो ग्रेजुअली और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसको उसने सरकार की तरफ से एक तालाब भी ले लिया। ग्रेजुअली ये है कि उसने एक छोटे से पैच से इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतना क्रॉप और इतना जो फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं वो वहाँ से वो प्रोड्यूस कर रहा है, और वाटर की एफिशिएंसी चूँकि ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर रहा है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों का आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम लोगों को एक तो क्रॉपिंग पैटर्न पे वर्क करना होगा, और दूसरा हम लोग को इंटीग्रेटेड मॉडल की तरफ जाना होगा कि किस तरीके से एक ऐसा फार्म डेवलप करें जो इंटर रिलेटेड हो, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री को भी इम्पोर्टेंस दें, हम एग्रीकल्चर को भी इम्पोर्टेंस दें, नए टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करें, साथ साथ ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ें। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की भी, तो आज के डेट में हम बहुत फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, बट क्या हमारे पास गोबर का खाद नहीं है? आज के डेट में तो हम जब बात करते हैं तो इसमें वर्मी कंपोस्ट हैं, इसके अलावा हमारे पास 10 फरनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा जो हम बना सकते हैं। इससे सॉइल की क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं होती है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो अगेन जो क्लाइमेट चेंज से अगर हमको लड़ना है और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनना है तो हमको हर क्षेत्र में इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप जैसे इन्होंने किसान पाठशाला की बात की, तो किसान पाठशाला भी अगर आप आएंगे तो आपको यही चीज़ दिखेगा। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो हम लोगों ने बीते 1.5-2 साल में पढ़ के, देख के, समझ के, सीख के, गलतियाँ करके हम लोगों ने इसको डेवलप किया। वो ऐसा क्षेत्र था जो 3 साल पहले तक वो ऐसे ही बैरन पड़ा हुआ रहता था। क्षमा चाहूँगा नीतीश सर, मैं आपके पास फिर आऊँगा कृषक पाठशाला के ऊपर में डिटेल से चर्चा करने के लिए। तो आपके लिए एक सेकेंड राउंड में हम आपसे कृषक पाठशाला के बारे में डिटेल में सुनेंगे। थैंक यू। जी थैंक यू सर। तो आपने बताया झारखंड के लैंड यूज़ पैटर्न किस तरीके से चेंज हो सकता है, या नए तरह का क्रॉपिंग पैटर्न की बात की आपने, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स की बात की, और इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन जो झारखंड में हो रहा है उसको लेकर के आपने बात किया। इसी से रिलेटेड मैं आना चाहूँगा प्रदीप हजारी सर के पास, क्योंकि आप सरकार को काफ़ी स्ट्रेटजिक सजेशंस भी दे पाते हैं, बहुत सारे प्लानिंग में आप शामिल हैं। तो सर ने जो बात किया कि चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न जो सजेस्ट किया जा रहा है, सो हाउ इट इज़ फॉर बेटर रेजिलियंस टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड इंश्योरिंग द लाइवलीहुड फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स, सो हाउ दिस लैंड यूज चेंज इन झारखंड कैन इंश्योर दैट, जैसे हर जगह पर धान ही लग रहा है, क्या उसकी जगह पर कोई अल्टरनेट लैंड यूज पैटर्न हो सकता है जो ज़्यादा रेजिलियंट हो झारखंड के लिए?
थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड जोहार, नमस्कार आप सभी को। संतोष जी ने और नीतीश सर ने जो बातें बताई, जो मैं बोलने वाला था उसमें दोनों बातें कहीं ना कहीं हैं, तो दोनों साइड क्वेश्चन भी था, आंसर भी था। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा अगले 30 सेकंड में। संतोष जी का ये कहना था कि गवर्नमेंट का रोल जहाँ तक क्लाइमेट चेंज पे है, तो गवर्नमेंट क्या करी और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए उन्होंने सजेस्ट किया। तो मैं इस गैदरिंग को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये तो नीतिगत एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो जो फेडरल सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, बट राज्य सरकारें भी कर रही हैं। और जहाँ तक झारखंड का सवाल है, तो फर्स्ट टाइम जो हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किया है कि 2070 तक हम पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ आ जाएंगे, मतलब नेट जीरो की तरफ चले जाएंगे, हम कुछ भी कार्बन इमिट नहीं करेंगे। तो उस दिशा में जो है राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स गठन किया है, जिसका नाम जो है वो सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन है, जो फॉरेस्ट और हमारे पर्यावरण विभाग के अंतर्गत वो टास्क फोर्स, उस टास्क फोर्स के हम मेंबर भी हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। और उसी कनेक्शन में आपको बता दूं कि कल 19 जुलाई को 10:30 बजे मुख्य सचिव सर की अध्यक्षता में उसका विजन डॉक्यूमेंट भी लॉन्च होने वाला है, और आप लोग इन्वाइटेड, अगर आपके पास इन्विटेशन है तो ओके, अदरवाइज मैं वर्बली आपको कहता हूँ कि वहाँ पे आएँ। उस विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन भी होगा एंड लॉट ऑफ क्लाइमेट एक्सपर्ट्स आर कमिंग देयर विल डिस्कस। और आने वाले समय में ये जो कार्बन क्रेडिट है या फार्मर को कितना जाएगा, वो कितना कार्बन सिंक कर रहे हैं, ये सारे डिसीजंस होंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बट ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान पूरे क्लाइमेट को ख़राब कर चुका है। मेरे ख्याल से हार्डली हम लोगों को पता हो कि हम लोग कितना क्लाइमेट को अभी तक ख़राब किए हैं, उस पर ज़रा सा जा कर के पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, हमने ख़राब किया है, बट हम जहाँ ख़राब किए हैं उसके ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ से नीचे आना। तो झारखंड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम 23% जो है अपना कोयला पूरे देश को देते हैं, और हमारा 11 डिस्ट्रिक्ट, हमारी जो 45% जो हमारी इकोनॉमी है, जो लाइवलीहुड जो जिससे जनरेट होता है, लोगों का निर्भरता है, उसमें 45% कोल इंडस्ट्री का है। तो एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज आएगा कि अगर हम आज ही कोल माइंस को बंद कर देते हैं, साउथ कोरिया ने बंद किया, तो पावर का क्या होगा, और फिर उससे जो सोशल इश्यूज होंगे, जो रिपरकेशंस होंगे, जो आर्थिक समस्याएं आएंगी, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, और वो एक है आने वाले समय में हो जाएगा। बट वी आर कंसर्न एंड वी आर डूइंग, बिकॉज वी इंडियंस वेरी मच कंसर्न फॉर दैट। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि ये बदलती क्लाइमेट चेंज में हम किस तरह से रिजिलियंट हो सकते हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात सर ने करी, दूसरा एक होता है क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, CSR आई थिंक सो, CRS और CAS। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बस हमको स्मार्टली काम करना है। और ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर कितना नुकसान पहुंचा रहा है, या जो धान हम उगा रहे हैं, जो धान लगा रहे हैं, वो कितना क्लाइमेट को नुकसान कर रहा है। क्या दिस इज द हाईएस्ट इमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस इमिटिंग क्रॉप, यस और नो? यस। आपको बता दें कि 19% जो क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर का है, जिस पे कंसर्न है। और हम लोग इसीलिए पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रॉप लैंड हमारे देश में ही है। हम लोग 158 मिलियन हेक्टेयर में खेती करते हैं, चाइना से भी ज़्यादा हम लोग ज़्यादा खेती करते हैं। बट शुक्रिया, हम लोग को थैंक्स होना चाहिए, और हमको खुशी होना चाहिए कि हमारे पास अभी 310 मिलियन टन का फूड प्रोडक्शन, हम लोग सरप्लस में है। अगले 18 महीने तक कुछ भी हो जाए, आपदा आ जाए, हम भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, बट ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज दिखता क्या है? सबसे पहले गर्मी लगती है ना शहर में, बारिश हो नहीं हो गर्मी लगने लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है, बारिश कम होती है, तो सूखा पड़ता है, तो क्रॉप खराब होता है। और सिर्फ धान ही क्यों आता है? क्योंकि आपको बता दें कि 38 लाख हेक्टेयर हमारे पास कृषि योग्य भूमि है, उसमें 28 लाख हेक्टेयर में नेट हम लोग खेती करते हैं, और उसमें 18 लाख हेक्टेयर में धान ही होता है, अर्थात 70% एरिया में धान ही होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये देखना है कि ये धान लगाने से, सिर्फ धान को हटा देने से, रिप्लेस कर देने से क्या हम क्लाइमेट को सस्टेन कर पाएंगे? क्या समस्या को दूर कर पाएंगे? क्या एक ही दिन में हम धान को लगाना बंद कर देंगे? हमारे साथ ICAR के एक हेड भी हैं, वो बताएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू नो द एडॉप्शन, द डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन।
आपने कभी देखा होगा, एडॉप्शन इज़ वेरी इजी थिंग, बट एडॉप्शन इज़ ए वेरी चैलेंजिंग थिंग। एक छोटे बच्चे को आप अडॉप्ट कर लीजिए, अगर आपके पास बच्चा नहीं हो तो अडॉप्ट तो कर लिए, उसको अडॉप्ट करने में आपको हालत ख़राब कर देगा 18 महीने। सो इट्स अ चैलेंज। तो इस चैलेंज को कैसे हम लोग एड्रेस करते हैं, तो तुरंत नहीं चेंज करके वी हैव लॉट ऑफ वेराइटीज़। आपको मैं बता दूं कि मोर देन हमारे झारखंड में 137 तरह की वैरायटी हमारे पास पड़ी हुई है, और उसमें कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं जो आप 100 दिन से भी कम दिन में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि जब बारिश होती है, नॉर्मल बारिश होती है, तो एज ए ट्रेडिशन हम 120 दिन, 140 दिन, 130 दिन की धान की वैरायटी लगाते हैं। तो वहाँ पे हमें साइंटिस्ट से हमें सजेशन मिल भी रहा है, बिकॉज ये एक दिन की बात नहीं, पिछले 2-3 साल से, क्योंकि हमें फ्रिक्वेंट ड्राउट्स हो रहे हैं झारखंड में। आप देखे होंगे पिछले 10 सालों में हमने 4 बार ड्राउट को देखा, और पिछले साल तो और भी सीवियर हो गया। रीज़न ये हो गया कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन पूरी तरह से ड्राई स्पेल हो गया, तो फार्मर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाया। सो दैट वाज अ टिपिकल सिचुएशन विच झारखंड फेस्ड इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। तो वहाँ पे हमें सजेशन ये आया ICAR से, बिरसा यूनिवर्सिटी से, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ICRISAT, इस तरह की संस्थाएं जो हमारे स्टेट के लिए जो है कंटीजेंसी प्लान क्रिएट करती हैं। तो वो कंटीजेंसी प्लान ब्यूटीफुली डिज़ाइन है, डिफाइंड है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म वेराइटीज़ पे जा सकते हैं। जो आप जनरल वेराइटीज़ लगाते हैं, IR64, MTU 10, 10,001, दीज वेराइटीज़ यू हैव टू शिफ्ट। तो उसमें अब क्या होता है कि देन यू हैव टू डू कैंपेनिंग। वहाँ पे सरकार का रोल होता है, कैंपेन हम लोग करते हैं। एक तो वो बात है, यस, बट जो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, जो अनसीन है, जो हमने देखा नहीं, जो विनीत सर ने बताया कि मोटा अनाज, मिलेट, हमारे, आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारा एक ICAR का इंस्टीट्यूशन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेज, ICAR पलांडू के बगल में है। वहाँ पे जर्म प्लाज्म रखा जाता है, वो एक जीन बैंक है। वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास 27 तरह का मिलेट होता है सर, जो दुनिया में कहीं नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो कल्चर है, यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ का एबोरिजिनल कल्चर है, जो ट्राइबल कल्चर है, वो जो आदिवासी कल्चर है, वो सिर्फ उसी को प्रमोट करता है। तो 27 तरह का मिलेट है। रीज़न एक ही चीज़ हमको करना पड़ेगा कि इसको रेप्लिकेट कराना है, क्योंकि एक ही बार में बीज आएगा नहीं। तो ठीक है, उसके लिए सरकार पॉलिसी बनाना चाहिए, तो वो हमारी नीति में आ चुका है। जो नीति सर को आपको बता ही दिया कि झारखंड मिलेट मिशन करके एक स्कीम इस बार लॉन्च किया गया, 50 करोड़ का, जो कि रोल हो चुका है। अब यह है कि झारखंड में पैडी कब चेंज हुआ। एक समय में अगर आप 15-20 साल पहले जाइएगा, अर्स्टवाइल बिहार जब था, तो आप देखे होंगे करीब 8-9 लाख हेक्टेयर में मिलेट लगता था। आज वो मिलेट का एरिया घट करके हो गया 40,000 हेक्टेयर। कोई सिविल सोसाइटी जो इस पर काम कर रही है, उनका क्लेम होता है कि 60,000 हेक्टेयर भी है, बट इट विल नॉट इफेक्ट वेयर आई एम ग्रोइंग 18 लाख हेक्टेयर्स ऑफ पैडी। 52 लाख टन हमको पैडी, उससे धान आता है, वो मेरा स्टेपल फूड है। वहाँ पे एक चैलेंज है, तो उसमें एक नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया कि झारखंड मिलेट मिशन के अंतर्गत हम लोग अगले 5 साल में 5 लाख हेक्टेयर जो है मोटा अनाज में कन्वर्ट करेंगे, जो कि क्लाइमेट से फाइट कर सकता है, कि डिजास्टर सिचुएशन से, जो आपदा का जो सिचुएशन आएगा, उससे हम अपने आप को रोक सकें। एक तो मैंने वो बताया, बट दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमारे सामने में है कि आपको बिलीव नहीं हुआ कि 2007 में हम 1,69,000 हेक्टेयर में दाल लगाते थे, और आज हम लोग 8 लाख हेक्टेयर में लगाते हैं। झारखंड इज द ओनली स्टेट अक्रॉस ऑल दी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, हमारा प्रोडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, 1069 kg है। 8 तरह का दाल हम उगाते हैं, उसमें अरहर हमारा सबसे मेजर है। दिस इज द बेस्ट ग्रोइंग। तो 1,69,000 हेक्टेयर से आज हम 8 लाख हेक्टेयर पे चले गए, और हमारा जो उत्पादकता के कारण हमारी उत्पादन शक्ति भी 8 लाख टन के करीब पहुंच चुकी है। अब इसको हमें क्या करना है कि ये जो 8 लाख हेक्टेयर है, इसको हम और 12 लाख हेक्टेयर तक ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास योजनाएं हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, NFSM करके एक योजना चलती भारत सरकार की, जो किसानों को दिया जाता है। उस स्कीम के कारण ही आज वो एरिया आपका बढ़ चुका है। जहाँ पे टार इलाका है, जहाँ पे बारिश कम है, पानी कम है, वहाँ पे हम ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी में जाते हैं। इसके अलावा मकई अभी मोटा अनाज में आता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है झारखंड। यहाँ रबी में भी मकई होता है और खरीफ में भी मकई होता है। जनरली हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जब पूरे देश में भिंडी नहीं होती है, यहीं पे भिंडी होती है। झारखंड एक ऐसे स्टेट है जहाँ सालों भर कॉलीफ्लावर होता है, कैबेज होता है। सिर्फ रांची डिस्ट्रिक्ट आपको 2 लाख टन कॉलीफ्लावर देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सिर्फ हम लोग चावल, दाल और गेहूँ और इस पे बात कर रहे हैं, मोटे अनाज पे बात कर रहे हैं, बट एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो भूल ये जाते हैं कि आपके राज्य में
जैसे संतोष जी ने बताया कि 75,000 हेक्टेयर में हम प्लांटेशन किए, वो क्या प्लांटेशन किए इन्होंने नहीं बताया, बट मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर भी करता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर में जो हमारे पास रफली जो एरिया है वो 4,21,000 हेक्टेयर है, उसमें 2,91,000 हेक्टेयर में आपको फ्रूट प्लांटेशंस हैं, जिसमें मैंगो है, लीची है, गुआवा है, ये सब। इसके अलावा जो सीजनल सब्जियां लगती हैं, और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो 18.5 लाख टन एक्सेस सरप्लस ये वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है। सर ने कहा कि फर्टिलाइजर कंजम्पशन, वो भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया का एवरेज फर्टिलाइजर कंजम्पशन जो 142 kg पर हेक्टेयर है, झारखंड का कितना कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, 92 kg है। अर्थात कि हम अभी भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक है, कम ही फर्टिलाइजर करते हैं, अर्थात केमिकल क्लाइमेट को हम कम डिस्टर्ब कर रहे हैं, वाटर को कम पॉल्यूट कर रहे हैं। झारखंड मात्र 150 करोड़ का पेस्टिसाइड यूज करता है, वहीं आपका उड़ीसा और बिहार दोनों मिलकर 600 करोड़ का पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। तो हम लोग जल्दी सुधर जाएंगे। हमारे फार्मर बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, सिर्फ इतना है कि आगे बढ़ाना है। सो नाउ कुछ करना नहीं है, इसके लिए सारी चीज़ें हैं। जो फोकस आपको करना है वो 4-5 एरिया फोकस करना है, जो हम यहाँ पे बताएंगे। हो सकता है हम गलत हो, हमको करेक्ट कीजिएगा, अगर हम सही होंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप ऐड कर दीजिएगा। पहला है कि एरिया अंडर जो मिलेट है और पल्सेस है उसको इंक्रीज कर दीजिए, 5 लाख हेक्टेयर तक मिलेट ले जाइए और 12 लाख हेक्टेयर तक आप पल्सेस ले जाइए। ऑलरेडी आपके पास 60,000 हेक्टेयर में मिलेट है और 8 लाख हेक्टेयर में करीब पल्सेस है, इसको हम बढ़ाएंगे, जिसके लिए हमारे पास योजना है। दूसरा है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रबी में हम लोग कर लेते हैं 28 लाख हेक्टेयर, पर रबी में जाकर के 8 लाख हेक्टेयर पर चला जाता है। बोले क्यों? पानी की कमी होती है क्या? नहीं, आपको साइंटिस्ट बताएंगे, बैठे हुए हैं अभी शिवेंद्र जी। यहाँ बिहेवियर में नहीं है, कल्चर में नहीं है, एक क्रॉप करेंगे दूसरा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज ट्राइबल कल्चर, मेरी संस्कृति पहला चीज़ कहती है कि एग्रीकल्चर इज ए डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो इसीलिए आप जब जाएंगे ट्राइबल एरियाज में देखेंगे, जब वहाँ पे खेती करेंगे तो देर शिफ्ट, वो 1 साल 2 साल नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें अवेयर करने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है कि जिससे आप बिना क्लाइमेट को डिस्टर्ब किए हो, आप सब्सिस्टेंस मॉइस्चर पे, सब्सिस्टेंस फर्टिलाइजेशन पे आप कल्टीवेट कर सकते हैं, पल्सेस के लिए जा सकते हैं। तो दोनों काम करेगा वो, एक तो क्लाइमेट को भी बचाएगा, दूसरा रिसिलियंट एग्रीकल्चर भी होगा, और दूसरा क्लाइमेट को भी बचाएंगे और फूड सिक्योरिटी बचेगी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आएगी। तीसरा पार्ट है वाटर मैनेजमेंट एंड सॉइल मैनेजमेंट। आपको बिलीव नहीं होगा कि जहाँ तक रिपोर्ट एक आया हुआ जिसमें 60% सॉइल ऑफ द झारखंड is either acidic or eroded. It's a very dangerous thing. There we have to take care, there we have to, this is the concern where the government has to work hard and farmers has to work hard. But वो भी काम हो सकता है क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन है, हमारी टोपोग्राफी जो है वो हमें परमिट नहीं करती है, बट वी हैव डेवलप्ड सम स्ट्रेटजी विच इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट शॉर्टली। बट सॉइल वाटर मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूं कि हम अभी भी झारखंड एग्रीकल्चर में मिनिमम पानी यूज़ करता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। हमको 13,828 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर रिसीव होता है और हमारे पास सफिशिएंट वाटर अभी ना पूरी तरह से एक्सप्लॉइट भी नहीं किए। फिर भी टोपोग्राफी को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंदर में पर ड्रॉप मोर क्रॉप होता है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग की व्यवस्था है। तो जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बढ़ाया जा रहा है, बट जो स्टेट इरिगेशन प्लान अभी बना है उसमें ये भी हुआ है कि 20% पैडी एरिया फील्ड क्रॉप को भी ड्रिप इरिगेशन में, स्प्रिंकल इरिगेशन में लाया जाए। तीसरा जो आप छोड़ नहीं सकते हैं, जो सर ने बताया, इंटीग्रेटेड। झारखंड एग्रीकल्चर स्टेट नहीं है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। यहाँ पे जानवर, यहाँ पे एनिमल, पशु बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिना उसके तो हम बात ही नहीं कर सकते। सो वो एक एरिया है जहाँ पे कि हमें इंटरवीन करना है। जो लोकल एनिमल्स हैं, जो जैसे आप अभी मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट एक 30-40 सेकंड के बाद कि एक फार्मर अगर 1 लाख एक महीने कमाना चाहता है तो कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, बिना लैंड का वो कमा सकता है। वहाँ पे है कि इंटरवीन करना स्मॉल एनिमल्स। आपको जो है डक है, यहाँ पे डकरी है। दूसरा है आपको कंट्री लेयर चिकन्स। आपको पता है कि हम लोग हर दिन झारखंड में कितना अंडा का रिक्वायरमेंट है? 35 लाख अंडे का डेली रिक्वायरमेंट है, बट हम रिसीव कर रहे हैं करीब 15-16 लाख, और 6-6.5 लाख अंडा हमको गाँवों से मिलता है। स्टिल देयर इज़ अ बिग गैप। तो पोल्ट्री लेयर की कंट्री लेयर की आवश्यकता है। तीसरा है आपको गोट्री, जैसा सर ने भेड़ बताया, यहाँ पे ब्लैक बंगाल इज अ वेरी फेमस ब्रीड विच इज़ गोइंग अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक बंगाल। इनफैक्ट आप में बिलीव नहीं होगा तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, जंगलों से जाती है। चौथा चीज़ आपके पास है पिग। पिगरी में
झारखंड वॉज वंस अपॉन अ लीडिंग टाइम. अगर आप अभी भी गूगल पे सर्च मारेंगे बेकन फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, इट विल टेक यू टू कांके देयर वाज अ बेकन फैक्ट्री टिल 1996 एंड इट वाज द एक्सपोर्ट सेंटर. बट आज वो बंद पड़ चुका है, मे बी ड्यू टू सम रीजन दैट इज अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन. गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट. सो दैट एरिया, दैट piggery can change the whole livelihood system of the, I think from livelihood the entrepreneurship system में मैं बात करूँगा कि वो उसको लेकर के आ जाएगा जो बिना क्लाइमेट को डिस्टर्ब किए हुए करेगा. लास्ट है, दो चीज़ और है, फिशरीज है. झारखंड हैज़ कम अप लाइक एनीथिंग इन द फिशरीज. विदाउट एनी पॉन्ड यू कैन have the fisheries in your backyard of your house. There is a two system has come up. That is, one is biofloc and second is recirculatory aquaculture system. These two systems, it's subsidized by the government. Government gives subsidy for each and every farmer. That is under प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ये दोनों जो सिस्टम है, without disturbing any water, आपको 5% सिर्फ वाटर लॉस होता है एक साल में. बट द प्रोडक्टिविटी इज 4 times हायर दैन द जनरल पॉन्ड. मतलब एक बायोफ्लॉक से आप एक बायोफ्लॉक सिस्टम से जो कि 1.25 लाख का आता है, जिसपे कि 60% का सब्सिडी है, आप 2.5 क्विंटल मछली 6 महीने में ले सकते हो. 2 हार्वेस्ट यू कैन हैव इन 1 ईयर. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना होगा. वो भी हाई वैल्यू फिश. तिलापिया है, पंगस है, ये 2 वैरायटी काफ़ी फेमस है यहाँ पे. और रोहू हो सकता है, कतला नहीं होता, कतला बहुत उछलता है, इसलिए उसको हटाया गया है. नाउ नेक्स्ट, अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि इनकम कैसे होगा. एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं. सपोज कीजिए मेरे पास ज़मीन नहीं है, नो एग्रीकल्चर, आई डोंट हैव एनी लैंड, बट आई वांटेड 250,000 रुपीज पर मंथ. टेल मी फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन अर्न और नॉट? यस, वी कैन अर्न. 400 मुर्गी का हमारा एक कंट्री लेयर का एक स्कीम चलता है मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत में. 400 मुर्गी रख लीजिए, 5 महीने का जेस्टेशन पीरियड है. 5 महीने के बाद एक मुर्गी एक अंडा देगी, जरूर श्योरली देगी, 18 महीने तक देगी. 400 देसी अंडा. एक देसी अंडा कितने का मिलता है मार्केट में? फार्मर का रेट है 8 रुपये पकड़ लीजिए. कितना हो गया साहब? 400 गुना 8, 3200 रुपया पर डे. अर्थात महीने का कितना हो गया? 96 हज़ार रुपया. चलिए 40% का कॉस्ट हटा दीजिए, कितना हुआ फार्मर के पास बचेगा महीने का? बताएं. हो गया, खत्म. माई प्रॉब्लम इज सॉल्व. इट वेरी सिंपल ना. तो सोचने की बात है, बिना डिस्टर्ब किए. उसके एक्सक्रीटा का वैल्यू मैंने लिया ही नहीं. 18 महीने के बाद मैं मुर्गी को बेचूंगा, 1.5 किलो का तो हो जाएगा सब. कितने का देता है अभी एक मुर्गी? 400 रुपये, 450 रुपये का ना. काम खत्म. वेरी सिंपल. बट अगर वहीं मैं बात करूंगा, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, सर ये 5 महीना हम क्या खाएंगे, मेरा कंजम्पशन कहाँ है? तो केसीसी दिया ना भाई आपको, हम 1,60,000 तक कोई आपको नहीं ले रहे हैं, मॉर्टगेज नहीं ले रहे हैं, आप ले लो. अच्छा नहीं सर, हमको डेली का बताइए, हमको डेली का खाना है, डेली चाहिए कैश. बहुत अच्छा भाई साहब, गाय पालते हो? नहीं सर, चाय वास्ता कहूँ सर, हो गाय नहीं पालता हूँ. एक डिफिकल्ट है, जब इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा. वहाँ सिविल सोसाइटीज़ को रोल करना पड़ेगा. सिविल सोसाइटीज़ का पार्टनरशिप यहीं पे होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी ब्लेम गेम. मैं लास्ट 2 महीने पहले एक जगह पे गया था. आई फेल्ट लिटिल बिट ऑकवर्ड कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं. तो ना, ब्यूरोक्रेसी इज द ओनली विच इज डिस्ट्रॉइंग दिस पार्टनरशिप बिटवीन सिविल सोसाइटीज. नॉट लाइक दैट. अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो देन यू कांट बिकम माई पार्टनर एट ऑल. अगर मैं करप्ट हूँ तो हाउ कैन बिकम माई पार्टनर? आप नहीं बनिए. देन योर रोल इज देयर दैट इंट्रोड्यूस एंड टेल देम टू हैव अ गाय. देसी गाय लेने के लिए बोलिए. HF में जर्सी भी नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए योजना है. 75%, 90% तक सब्सिडी है इसमें. अगर आप एक गाय लेते हैं और डेली 5 लीटर दूध देती है तो 39 रुपया हम लोग पे कर रहे हैं. हाईएस्ट प्राइस वी आर पेइंग इन इंडिया टू आवर डेयरी फार्मर्स. जो मेधा आप पी रहे हैं, खा रहे हैं, झारखंड मिल्क फेडरेशन, उसके अंदर में 39 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया? 198 रुपया. चलिए 198 रुपये में 50% हटा देते हैं. कितना बचा मेरे पास? रफली 100 रुपये बचा सर डेली का. तो महीने का कितना बचा? 3,000 रुपये बचा. डेली आपको कैश मिलेगा. सुबह दूध डालिए, शाम में पैसा दे देंगे आपको. सो नाउ द थिंग इज दैट वी हैव सेवरल ऑप्शंस. वी हैव ओनली वी हैव टू डिजाइन अ मॉडल विच इज फिटिंग टू माई सूट. अब ये आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको 50,000 कमाना है कि 1 लाख कमाना है कि 3,000 कमाना है. चॉइस इज योर्स. सरकार के पास योजनाएं हैं. मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर विभाग की जो योजनाएं बनती हैं हर साल की, जो नीति बनती है, वो 4,000 करोड़ की है. उस 4,000 करोड़ में बहुत सारे कंपोनेंट हैं. कुछ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बाहर भी नहीं है. सपोज कीजिए आपको फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आप घर के अंदर में खेती कर सकते हैं. मशरूम लगा सकते हैं, आप मशरूम की खेती कर सकते हैं. क्वाड्रीसेप मिलेट्रीज की कर सकते हैं. ICAR के साइंटिस्ट बताएंगे क्वालिटी मिलेट्रीज क्या होता है. झारखंड में हो रहा है, लोहरदगा में एक लड़का कर रहा है 24 साल का. फैंटास्टिक.
2.5 लाख रुपया केजी वो बेच रहा है, 7.5 लाख साल का कमा रहा है। उसके बाद आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, सर ने कहा है वर्मी कंपोस्ट आप कर सकते हैं। हमारे पास अर्बन फार्मिंग का एक स्कीम है जो आप अपना गार्डन डेवलप कर सकते हैं अपने छत पे। 50,000 हेक्टेयर सिर्फ रांची में 50,000 हेक्टेयर एरिया सिर्फ रूफ टॉप का है, जिसके ऊपर वी आर ब्रेकिंग आवर हेड टू मेक सम पॉलिसी सो दैट इट कैन बी ग्रीन कवरेज हो जाए, जो आपके न्यूट्रिशन को, आपके फूड सिक्योरिटी को, आपके घर, आपके वेजिटेबल आपके घर के पास पहुंच जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि देयर आर 10 schemes which government of Jharkhand is running, which is supporting directly, indirectly the issues of the climate change. The first, I think so, will be the first people of Jharkhand. Jharkhand will be the first state which will be claiming the highest carbon credit. संतोष जी को आज मैं बता दूं कि आज यहीं पे अपना ऑफिस खोल लीजिए, बहुत पैसा आने वाला है। पहला है प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना, 90% की सब्सिडी है। भारत सरकार 50% सब्सिडी देती है, ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है। 125 करोड़ की योजना है झारखंड के लिए। झारखंड मिलेट मिशन जो इस बार शुरुआत हुआ है 50 करोड़ का है। ग्रांट टू फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जितनी उसको मैचिंग ग्रांट मिलेगी एनसीडीसी या एसएफएससी से, जेएसएलपीएस से, इक्वली स्टेट गवर्नमेंट भी देगा। 50 करोड़ की योजना है। रिसर्च ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए 5 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। जो भी इंस्टीट्यूशन से रिसर्च इंस्टीट्यूशन, दे कैन कम, दे कैन सबमिट देयर प्रपोजल एंड दे कैन वर्क ऑन दैट। फिफ्थ है आपका प्रदीप सर, इन इंटरेस्ट मुख्यमंत्री, लास्ट मुझे खत्म करने दीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 300 करोड़ की योजना है, इसमें सारी चीज़ आते हैं। छठा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो है 80 करोड़ का, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया 2 कंपोनेंट। सातवां है ऑर्गेनिक फार्मिंग 50 करोड़, उसी के अंदर में परंपरागत कृषि विकास योजना जो नीतीश सर ने आपको बताया, जो वहाँ पे खूंटी में पाठशाला में चल रहा है, वो 50 करोड़ की योजना है। नेचुरल बैम्बू मिशन 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड इज नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री, जो बैम्बू मिशन आपको बताया उसी के अंदर में। फिर नेशनल बी मिशन है, हनी बी मिशन है, वो भी भारत सरकार की है। उसके बाद स्टेट हॉर्टिकल्चर स्कीम है, भारत सरकार की भी हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, 178 करोड़ रुपए की है। उसके बाद कस्टम हायरिंग सेंटर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मॉडल में फिट होता है इस के मॉडल में, वो 125 करोड़ की है। पॉन्ड रिनोवेशन हम लोग करते हैं जो 570 करोड़ का है। उसके बाद आपको क्रॉप रिस्क इंश्योरेंस है, हम लोग प्रधानमंत्री ये फसल बीमा योजना को रिप्लेस करके हम लोग अपना योजना चलाते हैं, जो कि 50 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 400 करोड़ आपके पास 2000 करोड़ का तो सिर्फ क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर के अंदर में, और सरकार उस पर काम कर रही है। यस, जरूरत इतना है समझने की, ये नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कितना तक किया है, मेरा स्टेटस आज क्या है और हमको कहाँ तक जाना है। आई थिंक सो दैट डे विल बी द लास्ट डे व्हेन वी विल start working on that, we will start getting the results out of it. Thank you very much for taking, sorry for taking the excess time, and thank you very much. Thank you, sir. So, now I will come to Dr. शिवेंद्र कुमार। तो सर, आप हमेशा से ही ट्री बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम एज ए अल्टरनेट लैंड यूज पैटर्न के रूप में आपने यहाँ बात कही है, और जिसके बहुत सारे एविडेंसेस भी है। तो how it contributes towards the climate resilience and a better income for farmers, as well as addressing the increasing desertification of Jharkhand। ये 2 challenges हैं, इसको फेस करने में किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकता है, और इसको लेकर के आपके क्या पर्सपेक्टिव हैं, ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मेरी आवाज़ मिल रही है पीछे में? आवाज़ आ रही है पीछे? आ रही है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद TRI और XISS को, और यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, लगभग जो की सब पॉइंट्स है वो तो सब लोग टच कर चुके हैं, और जो हो रहा है वो जानना आवश्यक है। इसीलिए ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, कुछ विषय है जिसको हम फ्लैग करना चाहेंगे, वो है जैसे नीतीश सर ने भी बताया था कि हमारा डेजर्टिफिकेशन का एक इशू है। राजी साहब ने भी बताया है कि हमारे पैडी 18 लाख हेक्टेयर में हमारे चल रहे हैं। करीब 38 लाख हेक्टेयर हमारे पास कृषि योग्य ज़मीन है। अच्छे बारिश होने के साल में हमारा रबी करीब 6 लाख का होता है और खरीफ करीब 16 लाख का होता है। ये सब हमारी स्टैटिस्टिक्स है और अच्छी है। लेकिन इशू यही है कि जब भी हम खेती करते हैं तो हमें जुताई तो करनी होगी, और जब भी हम जुताई करेंगे तो सॉइल लॉस तो होगा। ये तो एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है जो एग्रीकल्चर को देना पड़ता है,
और जब आप हिल एंड प्लेटू रीजन में हैं, स्लोपी लाइन पे खेती करते हैं, तो ये कॉस्ट और भी ज़्यादा होता है। अभी आंकड़ा यही है जो इसरो का है, जो 2021 वाले सर्वे का, कि पूरे भारतवर्ष में अगर 30% लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, डेजर्टिफिकेशन हुआ है, तो झारखंड में 70% हुआ है। और ये 70% देश का सबसे बड़ा फिगर है, क्योंकि इसमें करीब करीब 50% कृषि के कारण है और 20% माइनिंग के कारण है। ये जो कृषि के कारण जो हमारा सॉइल लॉस हो रहा है, यहाँ पर उसकी आवश्यकता आती है कि क्या हम इस तरह की खेती को मॉडिफाई कर सकते हैं जहाँ हमारे पास में खेत में सॉइल बाइंडर्स भी हों जो सॉइल लॉस को रोक सके। तो ट्रेडिशनली जो ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है वही हिल एंड प्लेटू रीजन के लिए रिकमेंडेड है, जहाँ पर कि आप खेती तो ज़रूर करते हैं लेकिन आप सॉइल बाइंडर्स के साथ में खेती करते हैं ताकि आपके सॉइल लॉस कम हो जाए। जैसे कि जब सॉइल लॉस हुआ तो नतीजा केवल सॉइल का नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हुआ और 0.5 से 0.4 के आसपास में पूरे स्टेट में हम लोग फेस कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक बताया, किसी स्पीड से अगर सॉइल लॉस होता रहे तो 20 साल में हम इसमें राइस नहीं ग्रो कर सकते हैं, जो आपने बताया, क्योंकि हमारी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा कंसर्न, जो ICAR का कंसर्न है, वो यही है कि ऐसे मिडवे को चलाया जाए जिसमें कि आप सॉइल लॉस को रोक सकें और जो हमारे स्टेट का जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको भी हम मीट कर सकें। तो कई इसमें मॉडल्स, जो एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स हैं, वो आए हैं। पहले एक चैलेंज हुआ करता था कि जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री में जाते थे तो सीरियल्स का स्कोप घट जाता था। अभी जो नए मॉडल्स आए हैं उसमें सीरियल्स का स्कोप बढ़ा दिया गया है ताकि हम सीरियल्स के साथ में ही आगे बढ़ सके। आप लोगों के जानकारी के लिए बताऊंगा कि जो पहले के मॉडल थे उसमें 5 मीटर बाई 5 मीटर पे हमारे ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम होते थे, बाद में 10 मीटर हुआ, अभी 20 मीटर का LA छोड़ा हुआ है। अगर आप 1 हेक्टेयर की बात करेंगे तो उसमें महोगनी के 70 पेड़ होते हैं, आम के 70 पेड़ होते हैं, पीच के 180 पेड़ होते हैं और बाकी 20 मीटर का जो LA छोड़ा है उसमें आप मरुआ ले सकते हैं और धान ले सकते हैं, मतलब आप सीजनल क्रॉप ले सकते हैं। आप चाहे तो पल्सेस ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, क्योंकि वो 20 मीटर ऐसा उसके अंदर में वे है जहाँ पर कि सन लविंग जो भी क्रॉप है वो लिया जा सकता है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि ट्री बेस्ड है, जो इसका नेचुरल रिक्वायरमेंट है। जब हम रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि उसमें बायोडाइवर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए। प्रदीप जी ने भी इसका मेंशन किया है कि 27 तरह के मिलेट हम लोग इसीलिए ग्रो करते थे क्योंकि हमारा बायोडाइवर्स फार्म था। बायोडाइवर्स फार्म, मेरा मानना है कि ट्री बेस्ड बायोडाइवर्स फार्म के बहुत सारे मॉडल्स हैं। शमशाद जी ने भी काम किया है, इन्होंने भी तसर बेस्ड फार्मिंग के ऊपर में काम किया है। लैक रिसर्च में लैक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम पे भी काम हुआ है। कुछ लोग अभी हनी के लिए अलग से प्लांटेशन कर रहे हैं। मतलब आपके उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ट्री उसका इंटीग्रल पार्ट होना जरूरी है। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ है जहाँ पर कि मेडिसिनल प्लांट की खेती है, जहाँ की शेड का एक अपना महत्व हो जाता है। तो ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम विथ डाइवर्स क्रॉप इनसाइड का जो मॉडल है वो हमें 3 चीज़ सेटिस्फाई करता है। एक, जो क्लाइमेट का जो एक रिक्वायरमेंट है कि हम कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग की तरफ बढ़ें, तो ट्री को आप इंटीग्रेट करते हैं तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो जाता है आप जो अपकमिंग मार्केट कार्बन का है उसको एड्रेस करते हैं। तीसरा होता है जो एनवायरमेंटल जो हमें क्लाइमेट एब्रेशन से जो लॉस हो रहा है उसको आप बचाते हैं। जो फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंसेसेंट रेन। बीच बीच में आप देखते हैं इतनी बारिश होती है जिसमें कि पूरा खेत ही बह जाता है। अगर हम इस समय में ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम के बारे में नहीं बात करें, कवर क्रॉप के बारे में ना बात करें, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी घटेगी, सॉइल लॉस भी बढ़ेगा और डिजर्टिफिकेशन भी बढ़ेगा। तो मोटे रूप में मैं इस चीज़ को रखना चाहूँगा कि झारखंड के पास में बहुत अच्छी टोपोग्राफी है जहाँ पर कि जल जमाव नहीं होता है, जहाँ पर कि आपके डाइवर्स क्रॉप का अपॉर्चुनिटी है और ट्री बेस्ड डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम के बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। लकीली उसमें से जो मैंगो बेस्ड है वो काफ़ी दूर तक गया भी है
हमें उसको भी स्टडी करना है कि अगर मैंगो पे हमें जो ऑब्जेक्टिव के साथ में उसे आगे ले जाया गया था और मीट हो रहा है क्या नहीं, और अगर उससे कुछ हमें लीड मिल रहा है तो जो दूसरे मॉडल्स हैं, चाहे वो टिम्बर बेस्ड वाला है, जैसे मैं बताया महोगनी और टीक का अलग से मॉडल है, दूसरा मॉडल है जिसमें कि MAP मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट को लेके जाते हैं। मतलब हमारे पास में वैरायटी ऑफ चॉइस है, उस हिसाब से हमें ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। Thank you, Kumar sir, for being very precise and suggesting very concrete models कि क्या कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे, हमारे साथ शमशाद हैं जिनका रोल बिल्कुल अलग है। एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं और शायद जब डेवलपमेंट में आए होंगे तो कभी सोचा नहीं होगा कि ये क्लाइमेट रेजिलियंस को लेके काम करना पड़ेगा, कार्बन मार्केट्स, कार्बन फाइनेंस को लेके काम करना पड़ेगा। तो शमशाद, मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा, रिफ्लेक्शन एज ए डेवलपमेंट प्रोफेशनल, ये जो कार्बन फाइनेंस एंड कार्बन मार्केट्स को लेकर के काम कर रहे हैं, इसमें किसानों के साथ काम करने का आपका एज ए डेवलपमेंट प्रोफेशनल क्या एक्सपीरियंस है और ये कैसे कम्युनिटी को बेनिफिट दे रहा है, इसको लेकर के आपके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं? सो शमशाद, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू अशोक। तो अभी जिस सारे लोगों ने जो बातचीत किए हैं, जो झारखंड का टोटल लैंड एरिया है उसका 40% के ऊपर में बात किए हैं। तो सर ने भी बताया कि झारखंड का 60% एरिया वेस्ट लैंड है। तो इसमें मेरा व्यू ये है, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इसके ऊपर में, कि प्रधान ने 1989 में वेस्ट लैंड डेवलपमेंट के लिए ये प्लान बनाया कि मैंने वेस्ट लैंड जो है प्राइवेटली वेस्ट लैंड, उसके ऊपर में मैंने तसर होस्ट प्लांट लगाऊंगा और उसके ऊपर में तसर का कीट पालन होगा। तसर के कीट पालन से जो पोशाक उत्पादन होगा उसका धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा और मार्केट। ये सोच थी। लेकिन 95 आते आते ये देखा गया कि प्लांटेशन तो बहुत हो गया लेकिन इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ टेक्नोलॉजी का कमी है जिसके चलते कीट पालन नहीं हो पा रहा है और कोकून प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद प्रधान ने शिफ्ट कर गया कि फॉरेस्ट में कीट पालन करेंगे। प्लांटेशन उन्होंने 95 में स्टॉप कर दिया। इसके बाद 95 तक में ऑलमोस्ट 4000 एकड़ उन्होंने प्लांटेशन किया था। मैं 96 में ज्वाइन किया। उस समय तक पूरा फोकस था कि सिल्क वॉर्म रेयरिंग फॉरेस्ट में करना है। लेकिन मैं चूँकि फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड हूँ तो मुझे समझ में आया कि ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस है। सिल्क वॉर्म रेयरिंग आप फॉरेस्ट में करते हैं और चूँकि संथाल परगना और कोल्हान रीजन, ये 2 रीजन है जो सिल्क वॉर्म रेयरिंग का एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी है। मैंने सैकड़ों साल से वो लोग करते आ रहे हैं और उसका ट्रेडिशनल इको रेसिस भी वहाँ का है। अगर कोल्हान बोले हैं तो दैट लार्जर ओल्डर कोल्हान, जो कि आपका पुरुलिया, बांकुड़ा, वेस्ट मिदनापुर, केवझर, आपका सुंदरगढ़, ये सारा उसके अंदर में आता था। फिर प्लांटेशन हम लोगों ने छोड़ दिया, लगा कि फॉरेस्ट में सही नहीं हो रहा है। तो 2000s के बाद से फिर से हम लोगों ने प्लांटेशन पे आ गया कि फॉरेस्ट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, प्लांटेशन करना चाहिए। फिर 2003 से लेकर के 2008 तक हम लोगों ने प्लांटेशन किया और ये हमने इस बीच में उस तरह का कुछ टेक्नोलॉजी फील्ड लेवल में रिसर्च करके डेवलप किया कि आपने प्लांटेशन में 1 एकड़ में रेयरिंग करके सिल्क वॉर्म कीट पालन करके 30,000 रुपया कमा सकते हैं। और हमने वेस्ट लैंड, यहाँ पर वैसे लैंड को हमने बोल रहे हैं, वेस्ट लैंड का बहुत कैटेगरी होता है। मैंने वैसे लैंड को बोलते हैं जिस लैंड पे कि आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते हैं, वैसे लैंड को ही हमने प्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके ऊपर में हम लोगों ने मॉडल बनाया। अनडिवाइडेड बिहार में सेरिकल्चर को डेड सेक्टर माना जाता था कि सेरिकल्चर डेड सेक्टर है और हम लोगों ने, प्रधान ने 2000 से लेकर के 2006 तक जो काम किया, ये पूरे सेक्टर को रिवाइव कर दिया है और आज के समय में ये काफ़ी पॉपुलर है। और हमारे वर्क के साथ में बहुत सारा पॉलिसी चेंजेस भी हुआ है, मैं उस पर अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा।
लेकिन ये कंटिन्यू मेरा प्लांटेशन का एक्टिविटी था और काफ़ी सक्सेसफुल प्लांटेशन किया। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेकर के किया, मैंने TW से लिया, मैंने नाबार्ड से फंड लिया, मैंने DRDA से भी फंड लेके प्लांटेशन आसन अर्जुना के किया। और वो जितना भी मैंने प्लांटेशन लास्ट 30 ईयर्स में हुआ है वो आज भी सर्वाइव कर रहा है। उसका एक ही रीज़न है, प्लांटेशन क्यों सर्वाइव कर रहा है, आज भी क्यों है, उसका एक ही रीज़न है कि उस प्लांट के साथ पे उसका लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है। उस पर कीट पालन करते हैं, उनको हमने क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करते हैं, और जो उनका कोसा का उत्पादन होता है उनका मार्केट में ह्यूज डिमांड है, ह्यूज डिफिसिट है, इसलिए ऑन द स्पॉट, ऑन द डोर के पास में उसका सारा सेल हो जाता है बेटर प्राइस में। तो ये कंटिन्यू ही था। लेकिन 2020 में आकर के कार्बन का बहुत पहले से सुन रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली कार्बन कैसे क्लेम किया जाता है, क्या प्रोसेस है। तो एक एजेंसी लाइवलीहुड वेंचर हमारे फील्ड विजिट में आए थे और उन्होंने मेरे सारे प्रोसेस को देखा, एसेस किया, और उन्होंने, हम लोगों ने उनको 1 ईयर और 2 ईयर ओल्ड प्लांटेशन से लेकर के 30 ईयर ओल्ड प्लांटेशन तक मैंने दिखाया। और मैंने ये भी दिखाया कि आप जहाँ पर भी देख लें कोई ऐसा प्लांटेशन आपको नहीं मिलेगा जो कि यूज़ नहीं होता है। और इसका एक ही रीज़न है कि ये कटा नहीं है, कि लोग इससे लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका फेलिंग नहीं हुआ है। तो हमारा फोकस हुआ कि क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला कि जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ऐसे लैंड को यूज़ कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है, आपने प्लांटेशन उस पर रेज कर रहे हैं, उससे 100% गारंटी के साथ में कुकुन प्रोडक्शन हो रहा है कि कुकुन प्रोडक्शन होना ही है। आप फेल्योर, चाहे वो रेनफॉल अच्छा हो या रेनफॉल नहीं हो, जिस साल रेनफॉल नहीं होता है तो इस साल और भी बम्पर प्रोडक्शन होता है। 30,000 की गारंटी है पर एकड़ की। तो ये भी है। आपके यहाँ यार्न का प्रोडक्शन होता है, जो मार्केट में सप्लाई करते हैं, इनकी एक अलग आइडेंटिटी है तसर यार्न की। आपके यहाँ फैब्रिक का प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग इनका भी होता है, सारा लिंकेज बना हुआ है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो आपने क्यों नहीं कार्बन क्लेम करते हैं? तो बोले मुझे पता नहीं है। तब उन्होंने बोला कि हम जो ये लाइवलीहुड वेंचर है ये बहुत सारा फंड रेज करते हैं हम लोग इन्वेस्टर से, और यहाँ पूल करके हमने कार्बन के लिए ये प्रोजेक्ट देते हैं। तो वो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया था 2000 में, लेकिन 2000 भी कोरोना ईयर था, 2001 भी कोरोना ईयर था, लेकिन फिर भी ये 2 साल में हमने करीब 2000 हेक्टेयर प्लांटेशन किया, और 2022 में अनदर 3,000 हेक्टेयर प्लांटेशन किया, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और हमने जो फील्ड में जा कर के लोगों से बात किया, चूँकि कार्बन बहुत बड़ा चीज़ है, इसका मेथोडोलॉजी में बात करेंगे, इसका कार्बन क्या है, बहुत मुश्किल होता है। हमने सिंपल गांव में जा कर के एक ही बात करते हैं, हमने, आपका ज़मीन है, इस ज़मीन को कुछ काम में नहीं ला रहे हैं, आप अपने ज़मीन पे पौधा लगाइए, पैसा हम ला करके आपको देते हैं, बस इतना ही, और इससे ज़्यादा आगे मत समझिए। तो वो बोल करके, और लोगों को हमने एक्सपोजर ऐसी जगह में जाकर के करवाते हैं जो हमारा इस्टेब्लिश्ड प्लांटेशन है, कि आप जाकर के देखो, खुद से इंटरेक्ट करो। और मैंने जहाँ पर भी प्लांटेशन किया है, प्लांटेशन करने का आज जो हम जूझ रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, हमारा जितना वेस्ट लैंड है उस पर भरपूर आपका ये वीड्स आ रहा है, पार्थेनियम है, लेंटेना का मारा है, इपोटोरियम है, ये सारे आ रहा है। ये सारे ही क्लाइमेट चेंज के चलते हो रहा है। एग्रीकल्चर हमारा इंश्योर नहीं है, कभी बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन पेडी कीजिए, कभी बोलते हैं कि भाई जुलाई में बारिश नहीं है, अभी शिफ्ट अगस्त हो गया, कुछ और कीजिए, किसी साल मई में ज़्यादा बारिश हो गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हमने ये 60% लैंड को ट्रैप करने का कोशिश किया है। और इसमें मज़े की बात यह है कि जब प्लांटेशन हमारा ये कन्विंस्ड हो जाता है, और हमने जितना जगह भी प्लांटेशन किया है, प्रोडक्शन होता है, सारे जगह हमारा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, और हमारा गारंटी है कि 4 साल के अंदर में हम सस्टेनेबिलिटी लाते हैं, उसको किसी की ग्रांट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट तो चूँकि मेरे पास था, बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बहुत हम लोगों ने नेगोशिएट नहीं किया, लेकिन मैंने सेकेंड प्रोजेक्ट जब जर्मनी के क्लाइमेट पार्टनर इम्पैक्ट से के साथ किया, उसमें हमने प्रोविज़न काफ़ी अच्छा रखा है कि लाइवलीहुड करना ही है, ये मैंडेटरी है। आप प्लांटेशन करोगे, हम लोगों ने बहुत डिस्कशन इसके ऊपर में भी किया था
कि ये हम लोगों ने अर्जुन ये टिम्बर क्यों नहीं लगा सकते हैं, टिक क्यों नहीं लगा सकते हैं, हमने शीशम क्यों नहीं लगा सकते हैं, महोगनी क्यों नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जो गारंटी 20 ईयर्स और 30 ईयर्स से कोई इन्वेस्टर को दे रहे हैं कि यह पौधा कटेगा नहीं, आपका इस 30 साल में कम्युनिटी के साथ में क्या इंगेजमेंट होगा। आप लाइवलीहुड उनके साथ करोगे, प्रोड्यूसर को ऑर्गेनाइज करोगे, तो आपका इंगेजमेंट होगा। अदरवाइज़ आपका जोगने के लिए तो नहीं जाओगे कि भाई कि हमने 30 साल तक जोगते रहेंगे। तो ये हमारा मॉडल, इसलिए इन्वेस्टर को भी हम बोलते हैं आप मुझे 6 ईयर सपोर्ट करो, 6th ईयर में प्लांटेशन रेडी हो जाएगा, इसके बाद मेरा अपना लाइवलीहुड मॉडल है, आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप 30 ईयर से बोलो, 40 ईयर से बोलो, ये प्लांट पूरा सर्वाइव करेगा। लेकिन जब इसको एक स्केल में हम जब जाते हैं ना, तो ये तब हमारा बहुत सारे इश्यूज़ आता है, क्योंकि जब लार्ज स्केल में प्लांटेशन करते हैं तो बहुत सारे लोकल लीडर्स होता है, वही पूछता है पैसा कहाँ से आ रहा है, आपने इतना पैसा कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, क्या है ये आप बताइए। अभी हमारे पास में जब हमने पहले संथाल परगना में ही करते थे, अभी हमने वेस्ट सिंहभूम में भी 3-4 ब्लॉक्स में शुरू किए हैं, सिमडेगा का 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक में कर रहे हैं, गुमला का 4 ब्लॉक में कर रहे हैं। तो ये सारा सवाल आने लगा है। तो अभी हमारा एजेंडा है कि लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएशन का ज़रूरत है कि आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज से 20 साल पहले कैसा क्लाइमेट था, आज कैसा क्लाइमेट है, ये क्यों हुआ है, और इसको अगर यदि हमने फिर उसी पोजीशन में लाना चाहते हैं जैसा 20 साल पहले था, तो क्या करना पड़ेगा मुझे। तो ये एक हमने अभी इसके ऊपर में ही हमने काम कर रहे हैं। तो अभी हमने स्टेक होल्डर वर्कशॉप करते हैं लोकली, जहाँ पर कि हमने पंचायत लीडर्स वगैरह को कॉल करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं, और हमने स्टेट लेवल में भी वर्कशॉप करते हैं जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है, बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करते हैं। और कम्युनिटी को बेटर ट्रेनिंग देने के लिए कुछ हमने पोस्टर बना रहे हैं, कुछ हम लोगों ने चलचित्र टाइप का बना रहे हैं हमने, ताकि उनको एक विजुअलाइज हमने कर सकें कि ये आपने 30 साल में क्या खोया है, और इस 30 साल को अगर फिर वापस लाना चाहते हैं तो आप कैसे करके ला सकते हैं। और ये हमने उसको लाइव एग्जाम्पल भी दिखाते हैं कि आप मेरे यहाँ पे चलिए, जहाँ पर जो हमारे यहाँ की स्ट्रक्चर होता है, पहले टाड़ सबसे ऊपर में टाड़ लैंड होता है, फिर मीडियम अपलैंड होता है, फिर अपलैंड होता है, फिर लो लैंड में होता है। अब चल करके देख लीजिए कि जहाँ पर ऊपर में 30 एकड़ एरिया को 40 एकड़ एरिया को मैंने ट्रीट कर दिया है, तो नीचे का लैंड का क्या हालत हो गया है, और कितना वाटर रिचार्ज हो रहा है, वहाँ पर कितना अच्छा आपका क्लाइमेट हो गया है, वहाँ पर आपको फ्रेश एयर मिल रहा है, एक तरह का इकोसिस्टम रीजनरेट कर दिए हैं कि एक वेस्टलैंड था जहाँ कुछ नहीं था, आज वहाँ पर आपका मॉनिटर लिजार्ड मिलेगा, आपको वहाँ पर खरगोश मिलेगा, आपको वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आपको मिलेंगे। तो एक तरह से हमने पूरा बायोडाइवर्सिटी को हमने एक क्रिएट कर रहा है एक लोकल एरिया में। वो आप उसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिल्कुल अलग होता है, लेकिन एक तरह का इकोसिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं जो रिवाइव कर रहे हैं। तो आप एक तरह से ड्रीम कर सकते हैं, अगर 60% एरिया की जो हम बात आज 40% का मेजर डिस्कशन हुआ है, हम वो 60% एरिया पे अगर फोकस करें और इस तरह का प्लांटेशन हमने अगर रेस करें और ये पूरा ही अगर हमने कवर कर दें, तो हमारा झारखंड का क्या सिनेरियो होगा। आज से 30 साल पहले जो रांची था, हमको लगता है कि उसको हमने वापस इसको पा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी को ये भी बोलते हुए सुना है, और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी अभी तक टोटल 7 इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट किया है। विज़िट करके उनका यही कहना है कि दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस इज़ द यू आर क्रिएटिंग एसेट्स फॉर द लॉन्ग टर्म एसेट्स, और इट विल, और ये जिंदा रहेगा, ये बचेगा 30 साल तक। इसका एक ही रीज़न है कि आपने सिल्क वर्म मेरीरिंग कर रहे हैं, जिस से 30 रुपया नहीं आता था, वहाँ आपने 30,000 रुपया इंश्योर कर रहा है। और हमारा अपना प्रोड्यूसर का मॉडल है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल है, कंप्लीट बैकवर्ड फॉरवर्ड का लिंकेज है। आपको किसी गवर्नमेंट के ऊपर में, किसी आपका डिपार्टमेंट के ऊपर में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप एज एन एंटरप्राइज पूरा बिजनेस को रन कर सकते हैं। थैंक यू।
और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैंने कार्बन के ऊपर मैं बहुत डिस्कस नहीं कर रहा है, उसके ऊपर में करेंगे तो वो सही नहीं होगा। सवाल के लिए हम आएंगे, ऑब्वियसली लोगों के पास में सवाल होंगे तो हम उसके ऊपर में फिर से आएंगे। और अभी हमारे साथ विजय शंकर जी हैं, जिनका कोर कॉम्पिटेंसी ये कार्बन फाइनेंस को लेकर के ही। हम लोग अभी तक सुनते रहे क्लाइमेट रेजिलियंस, किस तरह का एक्टिविटीज़ हो सकती है, किस तरह का लैंड यूज हो सकता है, ट्री बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम हो सकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकती है। हमने तरह तरह का टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों को लेकर के बात किया है। अभी हम लोग थोड़ा विजय शंकर जी से ये समझेंगे कि इसमें इन सबको कार्बन मार्केट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या सही में कोई पोटेंशियल है इसको लेकर के। तो कॉन्टेक्स्ट अगर ऐसे बोले कि झारखंड में जैसे ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से मनरेगा के अंदर में करीब करीब आज के दिनों में 75,000 एकड़ में आम की बागवानी हो चुकी है। तो बेई से ये आग्रह रहेगा बताने के लिए कि ये जो बागवानी है ये इंडिविजुअल फार्मर ओन्ड है। सो हाउ दिस फार्मर्स ओन प्रोग्राम लाइक BHGY कैन गेट द बेनिफिट ऑफ कार्बन रेवेन्यू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे ये संभव हो सकता है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो। Thank you, Sok ji. Thank you, TRI, for inviting me, and greetings to all panelists, learned panelists. थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कार्बन का, कि कार्बन एक कमोडिटी कब बना और कैसे बना। उसके बाद मैं ग्रेजुअली फर्स्ट फेज ऑफ कार्बन मार्केट पे आऊँगा, उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ कार्बन मार्केट पे आऊँगा, जहाँ पे फोकस्ड हैज शिफ्टेड फ्रॉम टिपिकल टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कार्बन क्रेडिट टू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कार्बन क्रेडिट। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था कैलिफोर्निया में, जब वहाँ पे एक एसिड रेनफॉल हुआ था, और उसका रीज़न ये पाया गया कि ये दिस इज़ ड्यू टू एक्सेसिव इमिशन। जब रेनफॉल का हमने एनालिसिस किया तो उसका नेचर एसिडिक था और वो काफ़ी चीज़ों को हार्म किया। तो कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम, जहाँ पे जो एक्सेसिव इमिटर थे उन पे एक कैप लगाया कि आप इतना ही इमिट कर सकते हैं, और एक जो कम इमिटर थे उसको बोला कि आपको इसके बदले में एक क्रेडिट मिलेगा जो आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं उनको जो ज़्यादा इमिट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेयर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड, बट ट्रूली दिस कार्बन क्रेडिट बिकम ए ग्लोबल कमोडिटी इन 1997, जब वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल में 150 देशों ने इसको रेटिफाई किया। उसमें से करीब 40 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्री थे, आप उनको लार्ज पोल्यूटर भी बोल सकते हैं, मोस्टली यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, यूएस ने रेटिफाई नहीं किया था। उन्होंने एक ऑब्लिगेशन लिया कि हम एक अपने सर्टेन ईयर को बेसलाइन मानेंगे और उससे अपने इमिशंस को एक सर्टेन वॉल्यूम में, सर्टेन क्वांटम में कम करेंगे। नाउ क्वेश्चन ये आया कि वो क्वांटम वो आएगा कहाँ से, फ्रॉम हेयर दैट विल कम। So they said कि we will purchase it from those technologies which mitigate carbon emissions in developing country. तो developing country में चाइना और इंडिया और ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन 4-5 कंट्रीज ने बड़ा ही वाइटल रोल प्ले किया, एंड गवर्नमेंट हैव फ्रेम्ड द डिफरेंट पॉलिसी टू प्रमोट द, ले जाते हैं जब किसी मैकेनिज्म में रजिस्टर करते हैं तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना होता है कि ये आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे। थर्ड इज व्हाट वुड बी द मैकेनिज्म, सरकार खुद से करेगी कि हमारे जैसे और संतोष जी जैसे फाइनेंसर और कंसल्टेंट को भी ढूंढेगी कि हाँ भाई आप मेरे लिए काम कर दो, विल कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो रेवेन्यू आएगा उसका ट्रांजेक्शन पाथवे क्या होगा, हु विल रिसीव द मनी एंड हाउ इट विल रीच टू द फार्मर्स। सो रफली जो बिरसा हरित ग्राम योजना का पैटर्न है 200 से 250 ट्री पर एकर्स का, उसमें रफली 3 से 4 क्रेडिट जनरेट होता है, एंड कंसिडरिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ $15 to $16, it will generate approximately 4 to 5,000 rupees for a farmers which is owning 1 acres of land. In my opinion, I mean, government should constitute a fund which will hold the carbon revenue if the everything goes well. हम प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर लेते हैं, मोनेटाइज कर लेते हैं, तो and make it a insurance fund or risk fund which can help farmers in very adverse situations. उनके क्रॉप को फ्यूचर में आप इंश्योरेंस दे सकते हैं, या आप दिस मैकेनिज्म दैट्स बेसिकली माई ओपिनियन कि ऐसे करेंगे। लाइक डायरेक्ट ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं, आपके अकाउंट में आ गया, जैसे आप डिफरेंट योजना में आ रहा है कि आप अपना KYC कीजिए और आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा। सिमिलर मैकेनिज्म कैन ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड, बट इन माई ओपिनियन
झारखंड में स्मॉल होल्डर फार्मर्स ज़्यादा हैं, तो इट्स बेटर टू मेक कंस्टिट्यूट ए फंड and government will hold it for risk mitigation of the climate change, these things. So this is how I would say that different projects like Birsa Harit Gram Yojana can be developed and they can harness the carbon revenue and that can benefit to the end user or farmers. Thank you. थैंक यू विजय जी, दिस वॉज क्वाइट इंसाइटफुल। बहुत सारी नई जानकारी आपने दी और इससे मैं इस तरह से भी कनेक्ट करता हूँ कि जो प्लांटेशन के प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट करती है उसमें मोस्टली 3 से 5 साल तक का सपोर्ट होता है, तो उसके बाद भी उसकी लॉन्गेविटी को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे सस्टेन कर सकते हैं और उसको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कहाँ से ला सकते हैं। तो माइट बी देयर इस तरह के फाइनेंसेस विल ऐड वैल्यू टू दीज प्रोग्राम्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस होल प्रोग्राम। सो आई थिंक दिस वाज क्वाइट अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। Now I will come back again to नीतीश सर that एक जो पार्ट मिसिंग रह गया था जो पूरा हम लोग नहीं कर पाए, दैट वाज बिरसा कृषक पाठशाला। तो बिरसा कृषक पाठशाला को लेकर के सर ने काफ़ी काम किया है, तो आपका उसके पीछे क्या सोच है और आगे आप उसको कैसे देखना चाहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा संक्षेप में बताएंगे तो इट विल बेनिफिट अस ऑल सर। दूसरा बेसिकली जैसे कि अभी सभी पैनलिस्ट ने बोला, तो बिरसा किसान जो हमारा किसान पाठशाला कर रहा है, किसान पाठशाला, वो उसका एक क्रक्स है। हम लोगों ने जब बात की कि हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिससे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, सॉइल ट्रीटमेंट की बात की गई, उसके बाद फिर बात की गई कि हम लोग किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना की बात की गई और अडॉप्शन की बात की गई, किस तरीके से BHGY को इतना मास लेवल पे एक्सेप्टेंस मिला। एट द सेम टाइम कि हम लोग BHGY को भी कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं। और अदर देन दिस जब हम लोग बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो ये इट इज़ एक्सेप्टेड कि जो एनिमल हस्बेंड्री है उससे अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो वो दे कंज्यूम फार मोर वाटर देन व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम अ एग्रीकल्चर क्रॉप। तो एनिमल हस्बेंड्री ऐसे भी अगर इफ इट इज यूज्ड फॉर मीट कंजम्पशन, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए किसान पाठशाला का नींव रखी गई और उसके बाद किसान पाठशाला में फिर अगर आप देखेंगे हम ब्रीफ कर देते कि क्या क्या है वहाँ पे और हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर में हम लोगों ने चीकू प्लांटेशन करा रखा है 1 एकड़ में, 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट है वहाँ पे, उसके अलावा फिर करीब 1.5 एकड़ में नींबू है, 1.5 एकड़ में गुआवा है और उसके बाद 50 डेसिमल्स में एवोकाडो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करके देखा है। और जो हमारे ये हैं पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स के मेड पे हम लोगों ने टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन किया है। पूरे बाउंड्री पे बैम्बू कल्टीवेशन हम लोग किनारे में किया है ताकि वो बायो फेंसिंग की तरह काम कर सके। उसके अलावा इंटर क्रॉपिंग को प्रमोट करने के लिए ताकि लोग वहाँ पे देख सके आके, हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन लगाया है और उसमें सीजनल एक साइकिल बना हुआ क्रॉप का कि अभी क्या लगाएंगे उसके बाद क्या लगाएंगे। जैसे एक कॉमन साइकिल हम बताते हैं जो हम लोग वहाँ फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सितंबर लास्ट वीक में हम लोग स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन कर देते हैं जिससे फ्रूटिंग निकलती है फेब तक। फेब में मिड फेब तक उसको हटा के फिर हम लोग वहाँ पे वाटरमेलन लगा देते हैं। वाटरमेलन से प्रोडक्शन मिलता है हम लोगों को मई फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। उसके बाद फिर उसको हटा के कुछ पैचेस में बरसाती टमाटर और चिली ये लगा देते हैं। तो ये 2-3 महीने तक, तो बेसिकली हर पीस ऑफ लैंड का एक साइकिल बना हुआ है, क्रॉप साइकिल। अब जब हम ऑल्टरनेट की बात करते हैं तो हम लोगों ने वहाँ पे फिर मशरूम यूनिट, हनी बी कीपिंग, एपीकल्चर, इसको प्रमोट किया है। उसके अलावा वहाँ पे डेयरी के लिए गिर गाय और मुर्रा भैंस वहाँ पे है। जैसे कि प्रदीप जी ने बताया भी था कि ब्लैक बंगाल हमारे पास, आई थिंक वी हैव द लार्जेस्ट, वी हैव देम इन लार्जेस्ट नंबर। तो वहाँ पे ब्लैक बंगाल गोट है। तो
तो इन सब चीज़ों को करके हम लोग का पर्पस ये था कि इट शुड एक्ट एज अ डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल एज अ ट्रेनिंग फार्म। एक कॉमन जैसे सब लोगों ने बात की, हम लोग हमेशा जब फील्ड में विजिट करते हैं तो एक सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है और इसका हम लोग जवाब ढूंढने का ही प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि यहाँ के किसान 2 फसल क्यों नहीं निकाल रहे हैं, मल्टीपल फसल की बात नहीं करते। अगर 2 फसल भी निकालने लगेंगे तो हमारा जो वो क्वेश्चन है ना फूड सिक्योरिटी की, कि हमारे इतना लैंड डिजर्टिफिकेशन में जा रहा है, लैंड की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, उसके साथ साथ हम रिक्लेम कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यही तरीका था कि फार्मर्स आएँ, इसको देखें, देख के रेप्लिकेट करें। जैसे हम बताते हैं आपको कि वहाँ पे 1 एकड़ में चीकू लगा था। ये चीकू का आइडिया बस ऐसे आया था कि हम लोगों ने 1-2 जगह पौधा देखा और ग्रोथ बहुत अच्छी थी, फ्रूटिंग बहुत अच्छा हो रहा था, तो हम लोगों ने 1 एकड़ में उसको इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे। और उसके बाद बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत हम लोगों ने इस साल जो फेज़ 1 में हमारा टारगेट था 2000 का, हम लोगों ने 2600 एकड़ में प्लांटेशन किया, जिसमें से 1000 एकड़ में हम लोगों ने आम बागवानी ली, 1000 एकड़ में हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रूट फार्मिंग लिया, जिसमें लेमन, गुआवा एंड मैंगो, और 600 एकड़ में बस चीकू प्लांटेशन। हम लोग इस चीज़ को शायद पता नहीं अभी तक ये चीज़ हम लोगों ने नहीं किया था। झारखंड के जो क्लाइमेटिक कंडीशन पर्टिकुलरली वो साइट्रस फ्रूट्स के लिए शायद बहुत अच्छा है, चाहे आप कीनू की बात करें या लेमन की बात कर लें। तो साइट्रस फ्रूट को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने 1000 एकड़ में जो जैसा बताया आपको कि मिक्स फ्रूट फार्मिंग हुई। तो ये एक्सेप्टेंस लोगों को इसलिए हुआ क्योंकि पहले लोग नहीं ले रहे थे, लोगों को किसान पाठशाला में दिखाया गया, हम लोग फार्मर्स को ले गए, जितने रोजगार सेवक थे, जितने मुखिया थे, सबको विजिट कराया गया, उनसे उन्होंने देखा और देख के उसके बाद ये एक्सेप्टेंस आई। अभी इस साल हम लोग 600 एकड़ पे हैं, मतलब आई थिंक नेक्स्ट ईयर मैंगो प्लांटेशन जो वो कम हो जाएगा और चीकू और मिक्स फार्मिंग ज़्यादा, मिक्स फ्रूट ज़्यादा हो जाएगा। अभी फिर फेज़ 2 में भी हम लोगों को मिला था BHGY में, तो अगेन उसमें भी लोग दे आर टेकिंग इट ग्लीफुली कि हमको दिया जाए, हम लेना चाहते हैं। उसके अलावा मशरूम प्रोडक्शन हो या फिर सैपलिंग नर्सरी रेजिंग हो, नर्सरी डेवलपमेंट हो, वहाँ एक और हमारा बेसिकली इंटेंशन ये है कि वहाँ पे जो भी पौधे हम लगाएं, या जैसे अभी हम लोग दीदी बगिया योजना की बात करते हैं नरेगा में, कि दीदी बगिया योजना से ही हम ये लेके टिम्बर और मैंगो प्लांटेशन जितना हो सके ले सकें। हम लोग वहाँ पे किसान पाठशाला में लोगों को नर्सरी रेजिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं कि घर घर जाके वो अपने घर पे, चूँकि हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे खूटी में पर्टिकुलरली, तो आपको जैक फ्रूट और मैंगो ये एबंडेंस में है, कोई पूछता नहीं है उसको। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको पेड़ पे दिख जाएगा और वो पक के सड़ के बेकार हो जाएगा, नोबडी इज कंज्यूमिंग इट। तो हम लोगों ने अब इसके लिए भी एक चीज़ किया कि एक प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे लगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि किसान मिलेट पे क्यों शिफ्ट होगा, तो टिल द टाइम वी आर इंश्योरिंग कि बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज आर इन प्लेस, टिल द टाइम वी आर नॉट इंश्योरिंग दैम दैट यू विल गेट मार्केट। और इसमें बहुत छोटा इनिशिएटिव की आवश्यकता है। अगर हम बात करें मड़ुआ मिल, जो हम लोग रागी बोलते हैं, मड़ुआ का आटा मार्केट में क्या रेट चल रहा है? आई थिंक 70-80 रुपीज़, 60-70 रुपये। मड़ुआ कैसे मिलता है मार्केट में? 18-20। 3 गुना। क्या करना है उसमें? कुछ नहीं, पाउडर करना है, बस उसको पीसना है, ठीक है, बस फ्लोर मिल में डाल के उसको ग्राइंड करके बेच देना है, उसको पैक करके बेच देना है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाया कि कुछ नहीं, जो जैक फ्रूट है, मैंगो है, हम कुछ नहीं करेंगे, किसान तोड़ के लेके आ जाए, वी विल बाई एट अ नॉमिनल प्राइस, 5 रुपये 10 रुपये केजी जो भी हो, उसको हम पैक करेंगे, पैक करके मार्केट करेंगे। उसका जो बेनिफिट होगा, दैट बेनिफिट एक चंक उस प्लांट के मेंटेनेंस के लिए जाएगा और बचा हुआ चंक किसान को जाएगा। तो इस इंटेंशन से हम लोगों ने उसको एक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट भी वहाँ पे ऐड किया है। अब एक चीज़ और वी आर प्लानिंग, मंकी फ्रूट कहते हैं उसको, तो अगर आप उसको कहीं बड़हड़ बोला जाता है और ट्राइबल एरियाज में डाऊ बोलते हैं, डाऊ बड़हड़, जिसका अचार बनता है और कंज्यूम भी करते हैं लोग।
तो ये ऐसे ही सडनली हम रनिया जा रहे थे एक बार, तो मेरी गाड़ी पे एक कुछ दब से आके गिरा। तो हमने पूछा क्या गिरा, तो उसने बताया कि सर ये, तो हम देख के लगा कि ये तो बड़ा है, हम लोग बड़े रहते हैं। देखिए क्यों ऐसा क्यों है, लोग खाते नहीं है इसको। तो बोला सर आप हर जगह चले जाइए, कोई कंज्यूम नहीं करता है। तो उसका मार्केट प्राइस आई जस्ट गूगल्ड, तो उसका प्राइस था बेंगलोर में 475 रुपीज़ kg। और यहाँ पे कोई नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। तो अब इन सब चीज़ों को हम कलेक्शन भी करवा ले, अगर हम फार्मर्स को, इंडिविजुअल्स को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक पूरा का पूरा पर्पस यही था कि डेमोन्स्ट्रेशन फार्म हो, देखें, लोग ट्रेन हो, एक फोरम हो जहाँ से वो नई टेक्नोलॉजी लर्न कर सके, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सके, और हम उनको वहाँ से मार्केटिंग स्किल्स भी अवेलेबल कराएं और प्रोडक्ट्स का मार्केट कर पाएँ, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो इनिशियली हम लोगों ने कर्रा में शुरू किया है, अभी तोरपा में भी शुरू हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसको मुरू में भी शुरू किया गया है। तो आर अल्टीमेट प्लान है इसकी, हम इसको हर ब्लॉक में करेंगे, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया, और अभी राइट नाउ द गवर्नमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग 100 किसान पाठशाला थ्रू आउट द स्टेट। तो आई थिंक इससे इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, लोकल इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, लोगों की ये जस्ट, क्योंकि हम लोगों ने कमी देखी है कि लोग देखते नहीं हैं तो सीखते नहीं हैं। ड्रैगन फ्रूट की एग्जांपल हम बताते हैं आपको, 1 एकड़ में खूंटी में ड्रैगन फ्रूट हुआ, एक किसान ने लगाया एट इज ओन, आउट ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। लास्ट ईयर आई थिंक प्रोडक्शन हुआ उसका, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग हुई उसमें। वो घर बैठे, दूसरा साल था, घर बैठे वो करीब 1.5 से 2 लाख कमाया, और उसमें आधे तो लोग आए वो लेके गए, मतलब आई थिंक ही वुड हैव सोल्ड बेयरली 25% ऑफ द प्रोड्यूस, और उसको कहीं बेचने जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उसको देख के फिर और लोग इंटरेस्टेड हुए हैं। तो आज के डेट में हमारे पास लगभग हम लोग 75 एकड़्स में हम लोग ड्रैगन फ्रूट लगाएं, और कई अलग से नहीं कन्वर्जन से, कुछ वाटरशेड से ले लिया, कुछ सीए से ले लिया, कुछ किसानों को जागरूक करके ले लिया, कुछ लोगों ने लोन लेके लगा लिया। अगर हम चीकू की बात करते हैं तो हम लोगों ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था 1 एकड़ के लिए, तो इट वाज टर्निंग आउट टू बी 1.5 to 2 लाख रुपीज मिनिमम स्टार्टिंग 3rd ईयर। सिमिलरली ड्रैगन फ्रूट का तो इट वाज इतना आ रहा था कि हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई आई वोंट कोट द फिगर। बट अगर हम आइडियली जाएं तो 1 एकड़ ड्रैगन फ्रूट से द मोस्ट कंजर्वेटिव फिगर विच आई एम टेलिंग यू आफ्टर 2 years is 10 lakhs पर एकड़। ये एकदम कंजर्वेटिव फिगर है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 20 लाख जा रहा था। तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ कि इतना कैसे हो सकता है, चूंकि हम लोगों ने देखा नहीं है। अभी फ्रूटिंग इनिशिएट जब शुरू हुआ है, तो प्रोडक्शन भी अगेन फुल फ्लेजेड नहीं था, तो एस्टिमेशन ही था, पढ़ के ही पता चला कि अच्छा इसमें एक पौधे में इतना फ्रूटिंग हो सकता है, लेट्स सी। बट अगेन एनीथिंग अबव 5 lakhs, पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी उस परिवार की, उस इनफैक्ट कहें तो अगर उस गांव की बदल सकती है इकोनॉमी। जी, थैंक यू सर। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए ये किसान पाठशाला बनाया गया था, और आज के डेट में आई थिंक एक्सेप्टेंस भी मिली है इसको, इनफैक्ट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो होपफुली जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी हमारे बाकी यंग फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे कैन सजेस्ट, दे कैन टेक अ आइडिया आउट ऑफ इट, एंड वो इंडिविजुअल फार्म्स को भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो अल्टीमेट गोल वही है कि फार्मर्स अपने गांव में, अपने पंचायत में एक ऐसे छोटी छोटी फार्म्स डेवलप करें, और जिससे वो एक रिसोर्स सेंटर की तरह काम करे पूरे पंचायत के लिए, पूरे ब्लॉक के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट से। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये किसान पाठशाला एक नए तरीके का लर्निंग ग्राउंड और डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर कम ट्रेनिंग सेंटर जैसा डेवलप होता जा रहा है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ए लॉट ऑफ ग्राउंड टुडे। काफ़ी कुछ बात हुई झारखंड के फार्मर्स के बारे में, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, नए तरह के लैंड यूज पैटर्न के बारे में, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में, और मैं सारे पैनल मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द इंसाइट्स, एंड वी आर इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम इट।
and we are taking note of it about your suggestions and the ideas, and this will be fed into our national colloquy, what are the discussions that has happened here. So thank you very much, sir. And now I invite Amita to take the stage. Thank you. Thank you, Ashok ji, and thank you to our esteemed panelists for such a thought-provoking and insightful interaction. Now I invite Karim ji and Ashok ji to present a token of appreciation to our esteemed guests. Thank you. Now I request KGBV कालामाटी की छात्राओं को कि वो स्टेज पे आए और डीडी सिक्योरिटी के साथ एक ग्रुप पिक्चर हम सभी के साथ एक ग्रुप पिक्चर के लिए. थैंक यू. इसमें से दो बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है और बाकी बच्चों ने आईटी क्वालिफाई किया है, एंड दे कम फ्रॉम केजीबीवी कस्तूरबा गांधी. और वहाँ पे एक इनिशिएटिव शुरू हुई थी 2 साल पहले, जिसको हम लोग सपनों की उड़ान नाम से शुरू किए थे. और फर्स्ट एट लास्ट आई थिंक दिस इज द सेकंड बैच जो क्वालिफाई कर रहा है. पहला बैच में 3 बच्चे क्वालिफाई किए थे पिछले साल, और इस साल तीन नीट में, 3 जेई में, 2 नीट में. दिस टाइम अराउंड टोटल बच्चे 12 बच्चे क्वालिफाई किए, 10 और 2 ना, हाँ 10 IIT में और 2 नीट में. तो इसमें से आई थिंक कुछ बच्चों को कॉलेज अलोकेट हो भी गया है और कुछ बच्चों का भी काउंसलिंग चल रहा है. तो आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. और आई थिंक 23 नीट, एंड आई थिंक गिव योर ब्लेसिंग्स टू देम. थैंक यू. It has been. As we draw the curtains on Indian Rural Colloquy Jharkhand edition, our heart brims with inspiration and our mind overflows with powerful insight. Now, I would call Manish ji to give a vote of thanks for the event. Privilege for me to stand here in front of you and convey my thanks and regards to all of you. At the outset, I would like to thank all the panelists, the panel members, the panel anchors, the moderators for their time and for their making us understand the issues and the prevailing nuances of the development sector and the issues and the points that they have raised in today's sessions. All the 4 sessions and all the 4 panelists, I would like to express my gratitude towards them. Secondly, I would extend my warm gratitude to XISS, which happens to be my alma mater, for not only partnering with us but also hosting us and for all the support that they have provided us.
I'd also like to thank students from XISS और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारी इन छोटी बच्चियों को जिन्होंने आज सफलता की इतनी ऊंची उड़ान हासिल की है और प्रेरणा स्रोत बनेंगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाली अपने जूनियर्स के लिए कि वो भी इस तरह का मुकाम हासिल करें. Lastly, I would thank our team, the TRF team, who has made all the efforts to make this program a great success. Thank you. And before I leave, I'll just give you an update that this is just a beginning. It's not an end. 1 तारीख से 8 तारीख तक इंडियन रूरल कॉलोक्यू का दिल्ली एडिशन है. So I'll ask everyone to please join. Thank you. As we conclude this conclave, let us carry the spirit of collaboration, compassion, and empathy within us. Let us embark and remember the stories we have heard today, the lessons we have learned, and the dreams we have shared. Thank you, one and all, for being part of this momentous event. The Indian Rural Colloquy Ranchi edition may have come to an end, but journey towards the brighter, more sustainable, equitable, and resilient rural India had just begun. Let us remember the change begins with us, and together we can turn 1 billion dreams into reality. Until we meet again, may the spirits of rural renaissance guide our path, and may our actions shape the brighter future for every village, every community, and every heart of our beloved Indians. Thank you so much, and have a great evening. Thank you for being with us, and I request you all to please register for our main event, which is going to take place from 1st of August until 8th of August in Delhi. Do not miss out on this. Most of the events are going to be virtually live session. I'm sure you all are going to have a very insightful time. So please do join. So thank you so much.